والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. یہ رات میں جو ہمیں جاگتے ہیں، یہ جاگنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا واسطے جاگتے ہیں؟ ہمارا بھی ایک سیلفش ہے، سیلفش مقصد ہے. سیلفش کا تو کیا؟ سواردھم. سب کو بھی ہے، تمنا کو بھی ہے، منجے بھی ہے. کیا ہے سواردھم؟ خود غرضی. خود غرضی کا تو میرا فائدہ. کیا واسطے بیٹھے ہیں بھائی؟ ہر آدمی کو یہ خیال ہے، ہر آدمی کے دل میں یہ خیال ہے کہ میرا فائدہ ہونا، مجھے آج کچھ فائدہ ہونا. تو یہ ارادے سے ہمیں پورے یہاں بیٹھے ہیں. تمہیں بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں. بازو کی عورتیں ذرا سنو، اچھا غور سے سنو. کیا فائدہ ہونا ہمنا کو؟ ہمیں ایک رات جاگے تو ہمنا کو 1000 مہینے کا ثواب ہونا، 1000 مہینے کا ثواب ہونا. 1 روپیہ ڈال کو ہمیں لاکھ روپے مارنا کر دیکھتے ہیں. ہر ایک جنابی، ہر ایک آدمی بھی ایک ارادے سے بیٹھے ہیں. دنیا میں جیسا لاٹری لیتے ہیں آدمی، لاٹری کی ٹکٹ انہوں بیچنے والے آپ کو بولتے ہیں بھائی لاٹری کی ٹکٹ 1 روپیہ دو، لاکھ روپے تم لگتے ہیں. تو ہر آدمی سوچتا ہے لاکھ روپے ایک انسان کمانا کو تو کتنا کی واقع پڑنا، کتنی کی پریشانی اٹھانا. وہ 1 دن 2 دن میں ہونے والا نہیں، 1 دن 2 دن میں ہونے والا نہیں. یہ بڑے بڑے مالدار ہیں نا، انہوں کچھ کر سکتے. بڑے بڑے مالدار ہیں، بڑے بڑے فیکٹریاں والے، بڑے دکانوں والے، ان کے دکان میں 15-20 آدمیاں کام کرنے والے، بڑا دکان ہوتا ہے شاپنگ مال کے سر کا. انہیں بھی ایک 10 لاکھ کا بیپار کرے تو لاکھ روپے کما سکتا ہے. فائدہ پیٹوبڑی رکھنا، انہیں بھی کیا رکھنا؟ پیٹوبڑی رکھنا بلہ کا. رکھنے کے بعد 10 لاکھ کا بیپار چلا تو 10% کے حساب سے دیا تو لاکھ روپے اسے آتے. لیکن کتنا پیٹوبڑی رکھنا انہیں؟ لیکن لاٹری کی ٹکٹ میں ویسا کیا بھی نہیں ہے. واقع پڑھنے کی ضرورت نہیں، محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خالی 1 روپے کی ٹکٹ لے لیا آدمی، لے کے جیب میں رکھ لیا. لاٹری اگر لگ گئی اسے تو لاکھ روپے آرام سے آ جاتی. تکلیف نہیں اس کا، پریشانی نہیں اس کا، مصیبت نہیں اس کا، آسان سے آ جاتی. تو ویسا ہمیں ایک لاٹری کا ٹکٹ مارنے کے لیے بیٹھے ہیں یہاں سب جنے بھی. ہمیں نہیں، دنیا میں کام بھی مسلمان آج کی رات میں بیٹھ کر کے اللہ کی بات سنتے ہیں، اللہ کے نبی کی بات سنتے ہیں، اسلام کی بات سنتے ہیں، قرآن کی بات سنتے ہیں. اور یہ شب قدر کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں. تو کیا ارادے سے بیٹھے ہیں؟ ہمیں ایک لاٹری مارنا چاہیے. لاٹری کا تو کیا ثواب اللہ کا ہونا. ہم لوگ اگر 1000 مہینے تمہیں ایسا روز بھی نماز نہ پڑھ کر روز بھی رات کو بیٹھے تو آتا ہوتا ثواب کربر تو ہمیں آ سکتی ہیں کیا؟ 1000 مہینے. 1000 مہینے کا تو کتنا ہوتا ہے؟ 80 سال 4 مہینے. خالی حساب لگائے تو میں اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہوں. اب 90 بچے بھی ہیں تو ان کے واسطے بھی پھر دوبارہ وہ واقعہ سناتا ہوں، آپ لوگوں کو ذہن میں تازہ ہو جائے گا. عربی میں 1000 کسے بولتے ہیں؟ بلہ کا، یعنی بہت زیادہ. یہ بات بولنے کے لیے 1000 کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ہمیں بھی کیا بولتے ہیں؟ میں کتنے بار بولے گا؟ بلہ کے بار بولا، 100 بار بولے ہوں کیا؟ تو ایک بار نصیحت کرنے گھر میں میں 100 بار بولے ہوں. تو 100 کا مطلب کیا؟ 100 کو تو ضرورت نہیں کیا. 100 سے بڑھ کر بلہ کے ہی 1000 ہے، 10,000 ہے، لاکھ ہے، کروڑ ہے، بلہ کے ہی. میں 100 بار بولا بھائی کہتے 100 بار بولے کا مطلب کیا؟ بلہ کے بار بولے ہوں، حساب میں کتنے بار بولے ہوں، یہ مقصد 100 کا. تو ویسا عربی میں 1000 بولتے ہیں بہت زیادہ، بلہ کا حساب نہیں سکتا. تو وہ بولنے کے لیے 1000 کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ رات میں تمہیں جاگ کر عبادت کریں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے تو تم نہ کو 1000 مہینہ کا ثواب دیتے ہو کر بولے. کتنے مہینہ کا؟ 1000 مہینہ کا. اب 1000 مہینہ کو کتنے دن ہوتے ہیں؟ 80 سال 4 مہینے. اس کے پیچھے ایک حدیث بھی ہے، سنو. اس کے پیچھے ایک حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرانے لوگوں کے قصے سناتے تھے.
पुराने लोग, पुराने जमाने के सहाबा को बिठा कर सुनाते थे। वो आदमी 500 साल जिया, एक आदमी 600 साल जिया, एक आदमी 800 साल जिया, तो ये किस्से सुनाते थे। और नूह अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह कुरान में क्या बोला है? उन्होंने 50 कम हजार, कहते बोलो 50 कम हजार का तो कितने साल हुए? 950 बरस। तो 950 बरस लोगों को दावत दिए, लोगों को बुलाए और अल्लाह की तरफ, इस्लाम की तरफ बुलाए। तो कितने बरस जीना उन्होंने? पैदा होते ही पैगंबर बनते नहीं। एक आदमी पैगंबर बनने के लिए हमारे नबी 40 साल में बने, हमारे नबी 40 साल में बने हैं। तो दूसरे नबी पैदा होते ही नबी बन सकते नहीं, तो उनको जरा उम्र लगती है, 20 साल की, 30 साल, 40 साल, अल्लाह की मर्जी हो। एक 50 साल भी हमें रख लेंगे तो 1000 साल उन्होंने जिए। 1000 साल इबादत करते थे, 1000 साल नमाज पढ़ते थे, 1000 साल रोजे रखते थे। तो ये जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना है तो सहाबा बोले, हजरत क्या हजरत, हमारी उम्र यहाँ 50 बरस, 60 बरस, 70 बरस है, 100, हमें मर जाते हैं। वो देखे तो 500 साल, 700 साल, 800 साल इबादत करी। अब हमारी उम्मत का दर्जा उनसे बढ़कर कैसा होता है? हमना को उनसे ज्यादा सवाब कैसा आता है? हमारी उम्र कम है, हमारी नमाज 50-60 बरस की, रोजे 50-60 बरस के, उनकी नमाज, उनके रोजे 700 बरस, 800 बरस है ना, कैसा हमना को सवाब मिलता हो? हमने कैसा हासिल कर सकते? अल्लाह हमने कितनी कम उम्र दिया ना, हमको पूछे सहाबा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद अल्लाह से दुआ करे या क्या पता नहीं, तो अल्लाह ताला हमारे लिए एक तोहफा दिया, इनाम के तौर पर हमारे लिए एक तोहफा दिया। चलो भाई, उनको उम्र उतनी लंबी दिया हो, 800 बरस, 900 बरस, 1000 बरस उम्र दिया हो, तुमना को उम्र कम दिया हो, लेकिन उनके बराबर तुमना को सवाब दे डाल दो। कैसा सवाब दे डाल दो? तुम्हें एक रात जाग कर इबादत कर लो, नमाज पढ़ लो, 80 को 3 बरस 4 महीने, एक 10 बरस जाग लिए तो 10 राता मिले तो 80 को 3 इंटू 10 से 830 बरस का सवाब तुमना को दिया। कितना आसान हो रहा है। देखो, हमारी उम्र कम है, लेकिन उतना सवाब हमें भी कमा ले सकते हैं। उतना सवाब कमा लेने के लिए क्या करना है? हमें कम से कम जिंदगी में एक 10 राता जागना, कम से कम 10 बरस। अब वो 10 बरस भी 5-5 राता जागेंगे तो इंशाअल्लाह वो 5वें कोसी की एक रात रहती है, तो हम को 1000 महीना का सवाब आगा। तो 80 को 3 बरस का सवाब ये बरस मिलेगा, 1.25 बरस, एक 80 को 3 बरस, अब एक बरस, एक 80 को 3 बरस, ऐसा 10 साल हम को ये रात मिल गई तो 830 बरस, एक 12 साल मिल गई तो 1000 बरस का सवाब हम को मिल जाता है। ये तुम ना को क्या की बोलते, देखो वो चुपके तेलुगु बोलती मभे पेटे डाली की, तुम ना चुपके हो क्या कि एक बोल रहा, लेंगे कहानी की सरकार नहीं। ये अल्लाह की बात, कुरान की बात है, ये अल्लाह की बात, कुरान की बात। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। लैलतुल क़द्र जो इज्जत वाली रात क्या है? 1000 महीना से बेहतर है। 1000 महीना से अल्लाह जब बोलता है तो 1000 महीने का तो हिसाब से 80 को 3 बरस 10-12 राता मिले तो हम को 1000 साल, 1000 बरस नमाज पढ़ता सवाब हम को मिल जाता है। तो वो सेल्फिशनेस यानी स्वार्थ हमसे हमें बैठे, खुद गर्जी से मंजे होना व सवाब होना, अल्लाह से मांगने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, इसके सिवा दूसरा क्या ये मकसद नहीं है हमारा। अब उन्होंने चाह दिए हैं कि हमारे घर में चाह नहीं, खाना हो क्या हमारे घर में है, हमें अच्छा खा सकते हैं, वो जमाना चलेगा। पुराना जमाना था, दावत को बोले तो ढकले ढकले जाते थे, ढकले को दरवाजे तोड़ डाले थे। एक बार, एक 15 साल पहले वो क्या करे ही सौंदर्य का घर उनका ऐसा बड़ी घर चीरी, वो चीरी में खाना खिलाते हैं। अपना पूरे बल्ला चल गई हमारे घर में चला शीशा, ये हो सकता ना है घर को ऊपर धाए चढ़ गए, चढ़िया को लाश को दरवाजे तोड़ने चाहिए अंदर घर में को, भाई 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 क्या भाई ठहरो भाई, सबको खिलाते हुए बल्ला का पके ऐसा होता, और सबर आता ना है हो या तो फिर क्या करना, खाली जाना नहीं क्या। अब घर करे बोला आगे हते मैं इनकी दावत है ले, मैं तू पका ले खाएगा, मैं आता नहीं घर को। अब
इन्हें यहाँ खाना खाने से गया तो क्या बोलते हैं, क्या जी तो बोले ना जी पुराने जमाने से था, खाने की दावत है कि ना मैं पका ही नहीं, दोपहर का था तो मैं भी बच्चे खा ली, अब इसे वहां भी गया यहाँ भी गया, उसके वास्ते इन्हें क्या करे हैं, दरवाजे तोड़ने अंदर चल गए, दरवाजे तोड़ने के अंदर चल गए हैं खाना। तो वो जमाना अलग, लेकिन आज ऐसा नहीं है। दावत को बोले तो क्या जाने के जा रहे उसके घर को, वहां जा खड़े रहने का क्या, वो दाल का चार तो कोई हमारा नहीं क्या, आदि के गोश्त लगा सब जगह खाती हमें बैठ को। तो ऐसा जमाना आ गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ जो बैठे हैं, हमें क्या भी आस करके बैठे नहीं, तुमना कौन भी यहाँ 1000 रुपए देने वाला नहीं, 2 हजार देने वाला नहीं, हमना कौन देने वाला नहीं, ना पैसे की आस है, ना खाने की आस है, ना और किसी चीज की आस है। आस है तो सिर्फ एक आस है, वो आस क्या है हमारी, अल्लाह से लगाकर बैठे हैं, दिल लगाकर, ऐ अल्लाह तेरे दरबार में बैठे हैं, ये अल्लाह का घर, ये मस्जिद, हर मस्जिद भी दुनिया में कितने मस्जिद हैं, वो सारे मस्जिद अल्लाह के घर। ऐ अल्लाह हमें तेरे घर में बैठे हैं, हमें तेरे भिखारी ही, हमें क्या है, तेरे भिखारी ही, तेरे सामने भीख मांगने के लिए आए हैं, तू देने वाला है, हम ना दे अल्लाह, क्या दे, खाना न हमें सवाब दे। हमारी जिंदगी के अंदर कितने की गलतियां हो जाती हैं, सुबह से लेकर शाम तक कितने की झूठ बोलते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कितने की गलत कामा बुरे कामा हो जाते हैं, लेकिन ये सब हमें माफी करा लेने के लिए अल्लाह के ने, अल्लाह मेरी जिंदगी के पूरे गुनाह माफ हो जाना। तो माफ होना का तो क्या करना, उतने नहीं क्या कमाना, इक्वल होना नहीं, खर्च है तो पैसे, आदमी खर्च पैसा भेजता है उसे पैसे दे डालना। मैं लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ तो वो खर्च कैसा भेजता है, मैं लाख रुपए कमाना, इधर व्यापार करको कि नहीं खाते करको कमाया तो ये लाख रुपए दे डाल को मैं वो खर्च पे ले सकता हूँ। तो वैसा हमारे गुनाह माफ होने के लिए हमें नेकियां कमाना, अगर नेकियां नहीं कमाए तो फिर हमारे गुनाह बढ़ जाते हैं, पहाड़ा की सरकार। तो वो गुनाह को माफ कराने के लिए अल्लाह के पास हमारे पास क्या भी आयुध हम नहीं है, हमारे आयुध हम क्या है, हमारा हथियार हमारी नमाज, हमारी दुआ और हमारे नेकियां। ये नेकियां हम कहते हैं वहां काम चलता है, नहीं तो क्या भी चलता नहीं। और नेकियां के साथ साथ अल्लाह की मेहरबानी भी होना। और एक बात, अहम बात सुने भी ही कई बार, अल्लाह चाहे तो बगैर उसकी मर्जी बल्ला के नेकियां लेते हुए अल्लाह माफ करा सकता है, उसकी राजी, उसकी मर्जी। उसके लिए एक किस्सा आपको सुनाता हूँ, पहले भी सुने हैं, दोबारा आपको ताज़ा करने के लिए सुनाता हूँ कि पुराने ज़माने में नबी साहब फरमाते हैं, एक आदमी था बड़ा रौडी उन्हें उग्रवादी का सरकार, कौन गए थे उसे बात करने सुनता नहीं, उन्हें किसकी बात सुनता नहीं, उसकी बात ही सुनना सब जने भी क्या, तो बात के बारे तो पकड़ के मारा था। कैसा मारता, दम से मारा था, आदमी को जान से मार डालता। तो नबी साहब फरमाते हैं कि उन्हें मारता 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 आदमियों को 90 को 9 को खत्म कर डाला था, 90 को 9 को मार डाला था। उसके बाद उसे जरा ख्याल आया, अब्बा कहीं का मेरी जिंदगी में ऐसे इतने अज्ञान को मार डाला होना, चाहते भी अल्लाह से माफी मांग लेंगे। जाको मोरट आदमी था, कैसा आदमी था, मोरट आदमी था, अल्लाह से माफी मांग लेंगे। अभी माफी मांगना का तो कैसा मुझे मालूम नहीं ना कर को, मस्जिद के एक हजरत थे तो हजरत के गया, हजरत के पास गया, जाको बोले हजरत क्या है, क्या तो मस्जिद के आ रहे ना, कभी फिर को देखता नहीं चला, कहीं को गए, क्या भी नहीं हजरत मैं 90 को अज्ञान मार डाला हूँ दम से, मंजे क्या तो भी अल्लाह का माफी होती है क्या, अल्लाह से मैं दुआ कर ले, अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर, अल्लाह को पूछना कर दो, मुझे क्या तो माफी होती है क्या कर दो। वो हजरत भी जरा गुस्से वाले थे, 90 को 9 मारे तिये का माफ कर अल्लाह, तिये माफ करता थी जाकर, इसे गुस्सा आगा ना चिक्कर एक जगह ना माल जबता लोग नहीं तो ऐसा गुस्सा आगा, अब माफ कर देना इसका तुम ना छोड़ के क्या करना चाहिए, हजरत को डाल डाला, मारा घुसा घुसा दम से मारा हजरत चलेगा। मैं क्या कि इतने दिन बुरी जिंदगी गुजारी हूँ, बुरे कामा में रही हूँ, क्या तो जरा अच्छा बनेंगे, अल्लाह का माफ कराने की उनका हो, तुम्हें वो भी नहीं करती जर्रा भी है। अब नहीं समझो तुमरा कहीं फुटका कहीं छोड़ा हो, हजरत को दम से मारा है। मारने के बाद घर को गया, फिर उसे बेचैनी शुरू होगी, बैठने हो या नहीं, जान बेचैनी होता है, क्या करना, मैं कैसा अल्लाह का ने बचना कर सोच को फिर घर से निकला। अब एक मस्जिद के ले जाएंगे, वो हजरत को पूछेंगे, ये हजरत है इसकी खबर बदले ऐसा कर रहा है मंजे, वो हजरत को पूछेंगे क्या निकला, निकला तो
घर करने से निकला है, मस्जिद दूर है, बीच में मौत आ गई। फरिश्ते आगे मौत के परसों बोला नहीं बयान में नहीं, फरिश्ते कितने रकम के ही, हर एक डिपार्टमेंट के ही, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट कौन सा? मौत का डिपार्टमेंट। कहीं को तो हर एक आदमी को आना, खाने का डिपार्टमेंट भी है, लेकिन एक आदमी एक दिन भूखा रहा था तो वो खाना उसे पहुंचा नहीं, वो डिपार्टमेंट उस दिन काम करा नहीं उसके लिए। और आपको मालूम है अफ्रीका में कितने बच्चे ऐसे ही, खाना नहीं पानी नहीं, तड़प तड़प को मर जाते हैं, बड़ी हड्डा हड्डा होगी। जहाँ को देखे तो अफ्रीका कंट्रीज में खाना नहीं है उनको, एक टाइम का खाना, तो वैसे ही तो उनका काम चला नहीं। लेकिन मौत उनको भी आती है, मालदार को भी आती है मौत, गरीब की भी आती है, हर एक इंसान को मौत आती है। तो मौत का डिपार्टमेंट बड़ा डिपार्टमेंट है। ये फरिश्ते हर जगह जाना सोच, भूखे करने को जाते, पेट भर को खाए वाले करने जाती, मालदार करने को जाती, गरीब करने जाती, हजरत करने को जाते, और एक अनपढ़ आदमी को पाए थे, उन लोग किस सब छोड़ने वाले नहीं। कौन है? मौत का फरिश्ता। तो मौत के फरिश्ते उसके ने कुबाए चल को जाता है, जाता 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 धन नजर गिर जाता है, गिरते ही फरिश्ते निकाल लिए रूह को। अब निकालना, ले जाना ऊपर को। तो दो रकम के फरिश्ते आए, दो रकम के फरिश्ते आए। एक रकम के वो फरिश्ते जो नेक आदमी की रूह को ले जाते, अच्छे आदमी की रूह को, मोबाइल पर्सन किस में ले आते? याद है किसी दूसरे में जमीन पर्सन मखमल के कपड़े में, एकदम मखमल नरम कपड़ा, वो लाल होता है, वही से कपड़े में लग जाती, नरम कपड़े में। तो वो फरिश्ते भी भाग लेकर आए, अयो हमें ले जाती इस रूह को। और बुरे आदमी को ले जाने के, उसके दम ले जाने के फरिश्ते भी भाग लेकर आए, सर्र उतर का है, टिकाओ जी हमें ले जाना। उन्हें किसमें ले आती? बुरे आदमी की रूह किसमें ले आती? थैले पट्टे में, पावा पोछते हैं नहीं में, हाँ मस्जिद का सामने घरा में सामने ले डाल ले आती, थैले पट्टे को डाल के पावा पोछते को मट्टी गिट्टी घर में घर से बोले आती। तो वैसा थैले पट्टा लगाती, टाट के दिल से उर्दू में टाट, वो फिर से भाग लेगा, ये फिर से भाग लेगा, कौन ले जाना? अब दो जना में क्लैश है, तू मैं तू। तब फिर फरिश्ते फिर अल्लाह के पास गए, अल्लाह अब उसकी रूह कौन लेने का ना? रूह निकालने का निकाल डालेगी, अब कौन लेकर आना? इनका वादा ना क्या? इनका वादा ना तो इनका ये ख्याल, इनकी बात क्या थी? नेक आदमियों को ले जाने वाले फरिश्ते की उनकी बात क्या थी? उनका वादा ना क्या था? इन्हें अच्छे इरादे से आया है, अब अच्छा बन जाना अगर सोचता है तो इसकी रूह हमें अच्छे आदमी के हिसाब से ले आती। बुरे आदमियों की रूह ले जाने वाले फरिश्ते उन्हें क्या बोलते हैं? वो कैसा होता है? कहाँ अच्छा बना उन्हें? अभी बना नहीं, उन्हें 100 आदमियों को मार डाला है दम से, और दम से मारे तो क्या सजा उसे? 2 लाख उसे। एक आदमी को जान से मारे तो, नाहक जान से मारे तो उसे 2 लाख की सजा होना, उसके वास्ते हमें उन्हें बुरा आदमी हमें ले आती गए। तो अल्लाह ताला के पास फरिश्ते जाए तो अल्लाह ताला उनको हुक्म देता है, अच्छा एक काम करो भाई, तुम्हें जाओ वो आदमी का मुर्दा कहाँ पड़े देखो, उसके घर करने से मस्जिद करने को जगह मापो, कितने मीटर है? 100 मीटर है समझो, एक मिसाल 100 मीटर है, वो 100 मीटर में इसका मुर्दा कहाँ पड़े? अगर मस्जिद के नजदीक चल रहा है इन्हें, उसका जिस्म मुर्दा वहां है तो इन्हें नेक आदमी के हिसाब में डाल लीजिए। नहीं अगर घर के नजदीक निकले हाथ पड़ रहा है तो उसे बुरे आदमी के हिसाब में डालने को वो फरिश्ते ले लेगा होगा तुम्हारे, जो फरिश्ते फिर को रिवर्स आए उसे मापने वास्ते। तब अल्लाह ताला अपने रहम से करम से जमीन को हुक्म दिया, ए जमीन तू नजदीक आ जा। किसे? इन्हें गिरे से क्या कि दूर है, मस्जिद से दूर है, घर के नजदीक गिरा है, लेकिन अल्लाह ताला क्या करे? उसे रहम करना, उसे माफ करना, उस इरादे से क्या करे अल्लाह ताला? वो जमीन को हुक्म दिया तू नजदीक आ जा। तो मुर्दे करने से मस्जिद करने की जमीन जो दूर थी वो नजदीक को आ गई, और घर करने से जो मुर्दा तक जो जमीन थी वो नजदीक थी तो वो लंबी हो गई। अब फरिश्ते मापे तो ये फरिश्ते बोले, कौन से फरिश्ते? नेक आदमी को ले जाने लगे, देखो भाई मापे तो यहाँ कितना है? ये 20 मीटर है, घर करने से 80 मीटर है। तो घर करने से दूर आ गए, मस्जिद के नजदीक आ गए, कर बोल वो फरिश्ते ले गए, अल्लाह ताला से माफ करे।
اب ہاں اس کی زندگی میں نیک کاما بلّہ کے نہیں تھے, کاما پورے برے کاما بلّہ کے کریا ہے, لیکن اللہ چاہا تو اسے معاف کرنا اگر بول رہے ہو تو اللہ معاف کرتا ہے. ویسے اگر کو سب جگہ معاف کرا دے, اگر کو نہیں ہمیں بھی ساتھ مار ڈالیں گے. حضرت بولے تو 100 جگہ 10 90 کو نجاں مار ڈالتا, ہمیں بھی جا میت جا پڑھ کو مر جائیں گے, مرتے اس ٹائم پر نہیں. وہ ایک ایک آدمی کو ایسا کراتا ہے اللہ, کرا تو ہم نہ کو دکھاتا ہے. کیا دکھاتا ہے؟ میں چاہا تو کیا تو بھی کر سکتا ہوں, معاف کرنا ہو تو آسانی سے جا چل, اسے کون پوچھنے والا. اب ایک کمپنی کا اونر ہے, فیکٹری کا, ریلائنس والا ہے, جیو کمپنی کا, مکیش امبانی, اس کا کام کرنے والا 1 لاکھ روپے خرچ لے لے, 10 لاکھ لے لے اس کا کام کرنے والا ورکر, انہیں معاف کرنا اسے کون پوچھنے والا؟ فیکٹری اس کی اونر, انہیں جان جا 10 لاکھ میں معاف کرا دوں بتائیں. تو ایسا کرنے والا دینے والا اللہ ہے, تو انہیں جو چاہے کر سکتا ہے, اس کی راضی اس کی مرضی. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بلاتا ہے, یہ بھی سنے ہیں تمہیں, پھر دوبارہ سنو, بہت اچھا ہے, بہت بڑے فائدے کی چیز ہے یہ. کیا واسطے فائدے کی چیز ہے؟ اللہ سے امید رکھنا, اللہ پر بھروسہ رکھنا. کس حساب سے بھروسہ رکھنا؟ اللہ چاہا تو ہمارے نیکیاں کم ہے تو بھی اللہ معاف کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلاتا ہے, اللہ کے آدمی پورے حشر کے میدان میں رہے کہا کرتا ہے, اب نزدیک جا کرتا ہے, اللہ کے نزدیک ہلو جا کرتا ہے. ہلو پوچھتا اللہ اس سے, زور سے پوچھتا نہیں. کیسا رہے؟ شراب پیا نہیں تو کتنا پیا سو, روز کو 2 باٹلا پیا نہیں, کتنے برس پیا ہے؟ 50 برس پیا ہے نہیں, 15 برس کی عمر ہے کہ نہیں کہ 10 کلاس پر کو ٹکاتے رہنے کو وہاں سے شروع کر کو مرے تک پیتاش تھا, پیا نہیں کیا کر. اب ہلو پیا سو تو اللہ اچھا لے. سنیما کتنے دیکھا ہے؟ وارم کو 2 دیکھتا تھا نہیں, اللہ دیکھیے اللہ. جھوٹے بات کتنے بولے؟ روز کو 100 جھوٹا بولتا تھا نہیں, 250 اوپر نیچے ٹکر مکر, اس کا نے 150 نکالنے, اس کا نے یہ وہ بول, کتنے جھوٹا بولے تو بولتا بولی ہو چلا تو سب خبر لیتا ہے. ایک نماز تو پڑھے تو نماز گیا نہیں, اللہ گیا نہیں, اللہ روزہ ایک تو بھی ہے نہیں, اللہ تو انہیں خبر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں چاہا تو انسان کو معاف کرنا ہو تو مجھے کون پوچھنے والے نہیں, کہیں کو معاف کرایا کر کو, میری مرضی. میں پکڑاتے بھی کون مجھے جواب دینے والے نہیں, میں معاف کراتے بھی مجھے کون بھی پوچھنے والے نہیں. تو اس کے واسطے اللہ تعالیٰ وہ آدمی سے سو پوچھتا ہے, انہیں پورے قبول لیتا ہے, پورے غلطیاں بھی قبول لیتا ہے کریا سو, اور کریا نہیں سو غلطیاں بھی. کرے نہیں سو غلطیاں تو کیا؟ نماز پڑھیا نہیں قبول لیا, وہ بھی غلطی تھی. نماز پڑھیا نہیں تو غلطی تھی, روزہ رہے نہیں تو غلطی تھی, اور کرنا نہیں سو کاما پورے کریا, وہ بھی غلطی تھی, وہ بھی قبول لیتا ہے, پورا قبول. لاسٹ میں اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے, ہلو پوچھتا ہے, اچھا لے میرے بارے میں کیا سوچتا ہے, اب میں کیا کرتی ہوں کر کے سوچتا ہے بول. تو انہیں بھی بڑا ہوشیار ہے ہمارے سرکار سے, بڑا ہوشیار. تو انہیں بولتا کیا نہیں اللہ تو بڑا معاف کرنے والا, تو رحم کرنے والا, تو معاف کرتے کر کے بول لیتا ہوں اللہ میں دل میں. تو اللہ تعالیٰ وہ بندہ بولتا ہے اچھا ویسا بول لیتا ہے میرے بارے میں, اچھا لے وہ معاف کر لیجیے, پورے گناہ تیرے معاف کرے, بھاگ جنت کو. ایک حاضر ہے کہ ہاں بھاگ یہاں سے, جتے بھاگ جنت میں لیا. تو پوری زندگی گناہوں کی, پوری زندگی غلطیاں کی, لیکن اللہ چاہا تو کیا ہے اسے معاف کر کے جنت میں بھیج سکتا ہے. اب حضرت بولا نہیں سما سے میں بھی نماز کو آتا نہیں, روزہ رہتا نہیں, کیا بھی کرتا نہیں, کچھ اور مجھے معاف کرتا نہیں. وہ اسے کسی کی ایک جنے کو کیا واسطے ہے؟ اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ میری طاقت دیکھو, میں کیا کرنا چاہتا کر سکتا, مجھے کون پوچھنے والے نہیں, میں کسی بھی جوابداری نہیں, میں کسی بھی ڈرنا ضرورت نہیں, میں کسی بھی حساب بولنے کی ضرورت نہیں, میں اونر, میں سپریم, میں کیا ختم کر سکتا ہوں. اور کیا ختم کر سکتا ہوں, کیا اچھا رقم سے کرتا ہے اللہ, برے رقم سے نہیں. کیا ختم کر سکتا ہوں میرے کو, ایک اچھے ایمان والے کو, نماز روزہ رہنے والے کو دوزخ میں ڈالتا نہیں. انہیں بولتا ہے کیا اللہ تو کیا ختم کر سکتے ہو میرے کو, یہ کہیں کہ اللہ اتنی بے انصافی کر ڈالا, اتنا ناحقی کر ڈالا کر کو پوچھ سکتا ہے. تو اللہ ناحقی میں کرتا نہیں, بے انصافی میں کرتا نہیں, معاف کرنے میں کرتا ہے. معاف کرنے میں جا بندے چھوڑ رہا تھا پہ جا.
लेकिन अच्छेपन में अच्छे आदमी को अच्छे बदला देने में वो बराबर बराबर देता है, बराबर बराबर देता है। और यहाँ एक बात ख्याल करने की, खास तौर पर याद रखने की, अल्लाह उसके कामा में यानी इबादत में अल्लाह को करना सो कामा में होना है तो छोड़ता है, लेकिन हमें इंसानों को करने के कामा में अल्लाह छोड़ता नहीं। मैं एक दिन नमाज पढ़ा नहीं, अल्लाह चाहे छोड़ सकता है, लेकिन मैं इनके पैसे ले लिया हूँ 500 के 1000 के, दिया नहीं, डुबा डाला। लोग पूछ कर थक गए, क्या जी हजरत पैसे लेना दिए ना, क्या पैसे दिए ना, तो जो तुले होना कर ठगाया, दिया नहीं, उन्होंने मर गए, मैं मर गया। अब कैसा इसका हिस्सा? अल्लाह माफ करता कहने का नहीं, अल्लाह माफ करता नहीं। अल्लाह के कामा में हक में नमाज रोजे में माफ करता है, लेकिन दूसरा को हमें सताए ही, दूसरा को मारे ही, या दूसरा का माल नाहक लिए ही, दूसरा को धोखा करे ही, वहां अल्लाह माफ करता नहीं। वहां क्या बोलता है अल्लाह ताला? नहीं बंदे जा उसका नहीं माफी मांगने का, मेरे कहने नहीं। क़यामत के मैदान में हमें जाको हमना को अगर नेकियां कम ही, हमारे गुनाह अल्लाह के हैं, तो अब हमें इंसानों को सताए ही, इंसानों को तकलीफ दिए हैं, तो वहां माफी होती नहीं, वहां खड़े रहना है। अल्लाह बोलता जा उसका जा माफी मांगने का ले जा, उन्हें माफ करा तो मैं माफ करा दूं। अब उन्हें कहीं माफ करता है, उन्हें माफ करता नहीं, कहीं उन्हें भी वो इंतजार में खड़ा है, मंजे भी नेकियां कम ही, मेरे भी नेकियां कम ही, मंजे कौन तो नेकियां दिया तो वो नेकियां ले लो, मैं जन्नत को चल जाऊंगा आसानी से कर, तो उन्हें वो इरादे में खड़ा रहता है। तो उस वक्त नबी साहब फरमाते हैं क़यामत के दिन गरीब आदमी कौन हो सकते? बिल्कुल गरीब आदमी, दुनिया में गरीब आदमी तो कौन? जिसके पास पैसे नहीं है उन्हें गरीब, घर नहीं है गरीब, स्कूटर नहीं है गरीब, जेब में कैश क्या भी नहीं है, 150 क्या भी नहीं है, बिल्कुल पुराने कपड़े पहनता है, नवे कपड़े नहीं, 2 जोड़े उसके लिए 1 जोड़ा चाहिए, उन्हें गरीब। दुनिया में मुफलिस कहते हैं, अरबी में से क्या बोलते हैं? मुफलिस, क्या भी नहीं वाला। दुनिया में कौन है? वो इतना पहले थे, अब नहीं। अब हर एक जने को 5 जोड़े 10 जोड़े 15 जोड़े ही, घर घर को स्कूटर है। जब मैं बोला कर बोला ना, हमारे गाँव में मेरे बचपन में 2 स्कूटर थे, अब कहते हैं 2000 रहते कहते घर को 2-2 3-3 4-4 भी ही, एक घर में 3-3 4-4 भी ही। तो पुराने जमाने की बात अलग, अब की बात अलग। अरबी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताए मुफलिस, मुफलिस का तो क्या? गरीब आदमी। कौन है गरीब आदमी? तो सहाबा को नबी साहब जब पूछे तो सहाबा बोले हजरत गरीब आदमी का तो किसका पैसा नहीं है कि उन्हें गरीब, लाचार, कंगाल कहते हैं उर्दू में से। कंगाल का तो क्या भी नहीं, हाथ में खाली हाथ, खाली हाथ, क्या भी नहीं है, तो वैसा आदमी कौन बताओ? ऐसे किसका नहीं कि उन्हें गरीब आदमी मुफलिस इधर को बोलो। लेकिन नबी साहब बोले नहीं, मुफलिस का तो उन्हें नहीं, मुफलिस का तो वो आदमी जो क़यामत के दिन नेकियां का पहाड़ लेकर आता है। सिर्फ बड़ा पहाड़ नेकियां, कितने नेकियां करे हिसाब नहीं, जो नमाज़ा पढ़े, रोजे रखे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, तस्बीह पढ़ा है, तस्बीह पढ़ा है, नमाज पढ़ा है, रोजा रखा है, ज़कात दिया है, अल्लाह के नेकियां हिसाब ही नहीं है। गरीबान खाना खिलाए, रोजेदारान खाना खिलाए, बल्ला की नेकियां कर को उन्हें नेकियां का पहाड़ लगा उतारता है। उतारे कि नहीं कि एक आदमी आता है, अल्लाह इन्हें दुनिया में मेरे ने 100 रुपये लिया था, दिया नहीं, डुबा डाला, होना कर, अब मुझे इंसाफ होना दे, दुनिया में दिया नहीं, मेरे पैसा मुझे इंसाफ होना। तो अल्लाह ताला क्या बोलता है? भाई देने के लिए क्या है, उसके नेकियां हैं, अजय भाई ये 100 रुपया मुझे नेकियां से उठा देगा, दे आओ, उन्हें ले को सवाब चल जाता है। अब एक ना आता है, आप बोलता है अल्लाह इन्हें मेरे को 500 लिया, अल्लाह दिया नहीं, अल्लाह दे दूँ कर को। अब एक ना बोलता है अल्लाह मेरे घर के बाजू को था, 2 हाथ की जगह बढ़ को डाल लिया अल्लाह ने, उसकी जगह हम कुछ, मेरी जगह हम कुछ, मुझे डरा को मार को यहाँ डाले, घर बंधा ले अल्लाह। अब मैं क्या करना? दुनिया में मेरी बात चली नहीं, किसे बोले तो भी इन्हें किसकी बात सुना नहीं, अब मुझे इंसाफ होना, यहाँ होना इंसाफ दे मुझे। तो अल्लाह ताला फरमाता है चल तू नेकियां कमाने का है नहीं, नमाज़ पढ़ा सो, रोजा रखा सो, खैर खैरत कर, वो नेकियां उठा को उसे दे रहा। ऐसा हमें किसके किसके बारे में नाहक करे ही, दुनिया में किसी किसे सताए ही, उसका माल नाहक लिए ही, चोरी करे ही, धोखा करे ही, दूसरे का हक मार डाले ही। इसमें एक बड़ी बात बोलते सुनो, भाना का हक भाया मल्लाक मारते ही,
दुनिया में बल्लाक चलता है। वो क्या हजरत? तो बाप मर जाने के बाद बेटे को कितना हक है कि बेटी के बाद बेटे को कितना हक है कि बेटी को भी वैसा हक है। कितना हक है? बेटे को 2 हिस्से, बेटी को 1 हिस्सा जाना। बाप मरने के बाद बाप की आस्ती में वो 10 रुपए रहते, वो 1000 रहते, वो लाख रहते, करोड़ रहते, कितना भी रहते, घरा ही, खेता ही, आम के बागा ही, सुनना है, कैश बैंक बैलेंस कैश है, सब भी पूरा हिसाब डालने के बाद भाइयों की जिम्मेदारी क्या है? तो भाना को भी बांट को देना बराबर। कैसा बराबर? भाई 2 हिस्से लेना, भान को 1 हिस्सा देना। ये बड़ा मुश्किल काम है, ये बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? देते नहीं कौन भी कहेगा देने का? तो शादी करे नहीं क्या? तो ये कितना माल डाल को दिन से शादी करे सो कि कहते ही ना दिन बात ये मैं क्या देता नहीं जा। ऐसा बोलने वाले भी ही क़यामत के दिन वो भाना को खड़े किए और बोलती है अल्लाह इन्हें मेरा भाई सगा भाई हमारे 2 जने के माँ बाप एक जने से, वो माँ बाप कुछ हमें पैदा हुए सो, लेकिन मेरे बाप या माँ मरने के बाद इन्हें क्या करे? मेरा भाई पूरा हड़प कर डाला पूरा भी। मुझे क्या दिया नहीं? घर भी नहीं ले लिया, आम का बाग भी नहीं ले लिया, बैंक में पैसे नहीं ले लिया, घर में सब सुनना भी नहीं ले लिया, मुझे क्या भी दिया नहीं। अब मुझे नेका दे, मेरा हक मुझे होना। तो भाना भी आग खड़ जाती। क्या करना? अल्लाह बोलता है आगे माँ तेरा भाई नेका कर लेकर आए, रमजान में रोजे था, 5 वक्त नमाज पढ़ा, खैर खैरा चंदे दिया, मस्जिद के का मदरसे के इनको उत्तर दिया, नेकियां लेकर एक बल्ला के कमा ले को उठा ले गया उसके नेकियां, तो नेकियां ले को भाग भी चली जाती है। पहले एक हिसाब से बोलोगे तो बोलना नहीं, फिर ही बोलता हूँ माना मोदी शत्रु एवरंटे माना अकचेल्ले हमारे बड़े दुश्मना कौन को? तो हमारे भानांत है। कई कुछ दुश्मन हमें समझते हैं, असल में दुश्मन हमें, असल में ना आके करने वाले हमें। उनका माल उनका हक उनको दे रहा है तो क़यामत के दिन क्या भी नहीं। हमें क्या करते हैं? भाई का बच्चे कहेगा देने का, मर्द बचत बांट लेती, कहता रहे तो एक जना तो एक जना लेता, 2 जने 2 लेते, 4 जने लेते। भाई को चाहे कि आप देते नहीं। अब उनको शादियां करे नहीं क्या? तो शादियां कर उसकी जिम्मेदारी पैदा कर लिया नहीं, पैदा करने से वास्ते उन्हें शादी कराया है, पैदा करने से वास्ते उसका जिम्मेदारी देखा है। तो मरने के बाद उन्हें पैदा वास्ते उसके आस्ती में 2 हिस्से मर्द बाने को, 1 हिस्सा भाइयों को जाना, कंपल्सरी देना। वो 10 रुपए भी रहने बाकी जो में बुढ़ा मरते समय पर 10 रुपया का नोट भी है, तो मरने के बाद एक भाई धान रहे तो भाई 6.5 रुपए लो, धान को 3.5 रुपए दो। 5 रुपए भी ही बाप के जोड़ में, तो क्या करो? तू 3 रुपए ले, उसे 2 रुपए 1.5 रुपया दे, तू 3.25 ले, उसे कोकम 2 दे देना सर। लाख रुपए ही तो लाख रुपए में 66% भाई को 2 हिस्से, भान को 1 हिस्सा देना सर। अगर भाया बल्ला के ही तो कितने आदमी तो होते 2-2 हिस्से, आस्ती को पूरा हिस्सा कर। भाना बल्ला के ही उनको भी आधा भाई को तो भान को 1। ये हिसाब से क्या करना है? देना है। अगर नहीं दिए तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है, बहुत बड़ा। दुनिया में क्या मैं चुका लेके जाती, लेकिन क़यामत के दिन आँख खड़ी जाती। क्या खड़ी जाती? अल्लाह मेरा भाई था, मेरा हक मारा, मुझे दिया नहीं, मेरे बाप का कमाई मेरे बाप का माल है, दिया नहीं। ये सब हमारे दुश्मना बनवा खड़ी जाती। अल्लाह का क्या करता है? दुश्मना नहीं, वो बात बोलना नहीं, कहीं तो हमें दुश्मना को बोल लेते हैं, लेकिन अल्लाह क्या बोलता है? अरे बेवकूफ, उसका हक उसे कहीं दिया नहीं, देना था। क़यामत के दिन वो नेकियां सब दिया था, हमारे नेकियां सब हमें खाली उठ खड़े जाते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो आदमी जो नेकियों का पहाड़ लाया था, क्या हो गया? अब दे क्या उठा उसके दे 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 को खाली हो गया। अभी आदमी आते थे, कई कदर आदमियों के बारे में अच्छा नहीं था इसका सुलूक, इसका आदमियों के बारे में इसका बिहेवियर अच्छा नहीं था। नमाज पढ़ता था, रोजा रखता था, वो अलग बात है। नमाज रोजे के साथ ये भी अच्छा रहना। कौन सा अच्छा रहना? आदमियों के साथ मानव संबंध आगे बढ़ेंगे को भाया भाना ये अलग से रहना। जरे बड़े भाया हैं, छोटे भाया को डरा धमका को बल्ला ले लेती, उनको कम देती, आस्ती बात देखते को नहीं। जरे छोटे भाया हैं उन्हें होशियार रहती, बड़े भाया को दवा डाल को घुमा लो, अंदर बाप को की अम्मा को हाथ में डालने को मैती जेब के ले सके जना सो ऐसा करके उन्होंने जरा छोटे भाई में दबा तो चले ही दुनिया में। तो इस हिसाब से कौन भी करो नाहाफी, कौन भी बुरा करो,
उसका हिसाब क़यामत के दिन देना है और अल्लाह ताला के सामने हमारे नेकियां होने के लिए हमारे भाई होंगे, हमारे भाना होंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें जहां तक हो सके बाप अगर मरता है तो मरने के बाद बाप की आस्ती में भान को जाना, तो हिस्सा भान को दे डालना, हमारा हिस्सा हमें ले लेना। कितने जने भी रहो, मर्द बच्चा को 2 हिस्से, भाई के बच्चे को 1 हिस्सा। एक खर्च है वो कौन भरता है हजरत? बाबा 5 लाख खर्च कर दो गए, वो कौन भरता है? तो उसमें क्या है, तो पहले खर्च अदा करो। इस्लाम में क्या है, एक आदमी मरने के बाद पहले उसकी आस्ती बांटने से पहले उसका खर्च पहले अदा करो। खर्च अदा होने के बाद बच्चा तो तुम्हें बांट लो, नहीं तो खुद बांट लो, रखो, पहले खर्च दो। जरा आदमी क्या करती, खर्च है तो क्या हम लगा दी, क्या करेंगी, हमें देते नहीं, कर को देते नहीं। अब वो खर्च वाला गले दे के आता है, मेरा बेटा लिया मेरे को चलेगा, इसका डुबा देना, मेरा माल डुबाया, उन्हें गले देना आता है। ये मैं समझा थी, दिले बन जाए, आप पैसे बन जाएंगे ही नहीं, पैसे बन जाएगा। लेकिन जरा इरा शरत वाले, गुस्से वाले, इंसाफ वाले क्या करते, भाई क्या बोलना था हमारे बाप को, कितना लिया हमारे बात रखा दे। और अगर बाप का खर्च है तो बाप क्या आस्ती रखा नहीं तो भी बच्चे देना, कई को उन्हें खर्च करके किसके वास्ते कराया जाता है, बच्चा के वास्ते, जोरू बच्चा के वास्ते, जोरू बच्चा के वास्ते तो उन्हें कराया जाता है, खिलाने पिलाने। तो इसलिए बाप का खर्च अदा करना बेटादारान की जिम्मेदारी है। भाई के बच्चे भी अगर उनके पास माल मरता है तो उन्हें भी आपका खर्च अदा कर सकते, उन्हें भी अदा कर सकते, उनके पास सहूलत है। तो ऐसा नहीं है तो उन्हें क्या भी नहीं कर सकते। अच्छा, तुम ना ये खुशी की बात बोलता हूँ, बैकान अब तक बैकान जो समझते ही वैसा नहीं सर का मर्द बने फेवर में ये खुशी की बात आपको सुनाता हूँ। वो क्या खुशी की बात है, मामूल से घरा में क्या बोलते हैं, अम्मा का क्या माल है कि वो पूरा भाई के बच्चा कुछ मर्द बच्चा को नहीं कर कोई एक डरा रखी भाई का, अम्मा के माला कम में झुमके नकली से अम्मा के नाम के बैंक में जो पैसे वो सभी हमारे चाह, अरे दादा के देते नहीं, भैया के देते नहीं, अम्मा का माल से हमारा कहते नहीं, अम्मा के माल में भी भाई को 2 हिस्से हैं, मर्द बच्चे को खुश हो जाओ। और ये बात अच्छा याद रख लो, अम्मा की आस्ती में भी अम्मा मर गई तो भी मर्द बच्चे को 2 हिस्से, भाई को बच्चे के 1 हिस्सा तमाम भी, और बाप के माल में भी भाई मर्द बच्चे को 2 हिस्से, भाई को बच्चे के 1 हिस्सा। जरा इतना क्या सुना कि तो माँ का माल, माँ का पैसा रहा तो वो सब भाई के बच्चा को, मर्द बच्चा को नहीं पूछना, नहीं तुम्हें खामोश हो जाओ, वो तुम्हें क्या देते नहीं, हमें माल ले लेती नहीं, वैसा क्या तुम्हारा हक क्या भी नहीं है। भाई को बच्चा का हक वो टाइम में भी एक हिस्सा, माँ के माल में भी 2 हिस्से मर्द बच्चे को। अगर क्या तो भी भाइया जान दे ले मेरे भाव को दयाल तुम्हारे को खुशी दे तो जरा ले ले, वो अलग बात, लेकिन हिस्से में बराबर है, इस टाइम को माँ के माल में भी मर्द बच्चे को भी हिस्सा है इस्लाम के अंदर। तो क़यामत के दिन वो आदमी क्या होता है, वो नेकियां कमा लेना कर आया आदमी, कमा लेकर आया आदमी, वो नेकियां पूरे खाली हो गए। अभी आदमी आते थे अल्लाह को बोलते अल्लाह इन्हें मंजे मारे, अल्लाह जाता है तो इन्हें गाली दिया, अल्लाह जाता है तो चुपके थे, मैं उसे क्या बोला नहीं, मुझे गालियाँ दिए, मुझे इंसाफ होना। अब अल्लाह क्या बोलता है, गाली उन्हें दिया तो फिर आपको गाली देगा नहीं, अल्लाह क्या बोलता है, अच्छा है ढेर बात इसके नेकियां दी तो हाँ होगी खाली, लगाया तो पहाड़ पूरा खाली हो गया नेकियां का। तो अल्लाह बोलता है तेरे गुनाह इसके सिर पर डाल के जा, तू खाना से मारा इन्हें खान दे, तो उसका गुनाह उठा दे। हम अबे क्या ना आया, उन्हें क्या क्यों बोला, उसका गुनाह उठा के डालते 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 ये नेकियां का पहाड़ खत्म हो गया, गुनाहों का पहाड़ बल्ला का होगा। अब ये मारा उनसे भी इन्हें खाना, उन्होंने खाना से मारा इन्हें खाना, उन्होंने जलना से अंगार में इन्हें जलना। कई को अल्लाह तो कई को दुनिया में ना हक करे, दुनिया में लोगों के साथ लोगों का हक मारे, भाया का हक मारे, भाया भाना का हक मारे, मामुआ का हक मारे, चिच्चा का मारे, भांजा का हक मारे, करे है दुनिया में, तो पूरा हक यहाँ अदा करना पड़ता है। तो क़यामत के दिन ये होने वाला है। अल्लाह ताला इंसान के हक को कभी माफ करने वाला नहीं, अल्लाह के हक को माफ कर सकता है अल्लाह चाहा तो। इस तरीके से जो नेकियां हमें कमाते हैं, पहली बात फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, हमें यहाँ क्या वास्ते बैठे हैं, नेकियां कमाने के वास्ते, अल्लाह के नेकियां लेने के वास्ते। ये जाप को इबादत करे तो इबादत करते क्या, अल्लाह को याद करना, अल्लाह को याद करने में 4 काम ही पहले बोला हो तुम में,
पहला काम क्या, नमाज पढ़ना, अल्लाह की याद करना, पढ़े ही हमें 8 रकात, पहले 4 रकात फर्ज पढ़ी, फिर को 2 रकात सुन्नत पढ़ी, फिर को 8 रकात तरावी पढ़ी, कहते हुए 8 4 1 2 14 रकात हमें पढ़े। अभी वितर पढ़ने का है, हमें वो आखिरी वक्त में पढ़ना। वितर कब पढ़ना, नबी साहब ने क्या फरमाया है, तुम्हें ईशा की नमाज पढ़ ली, सुन्नत पढ़ ली, अब जाकर सो जाना का तो वितर पढ़ने को जाकर सो जाओ। नहीं, तहज्जुद पढ़ना, अभी रात में नमाज पढ़ना अगर को तुम्हारा इरादा रहा तो तुम्हें क्या करो, वितर की नमाज टिका कर रखो, पढ़ो न को। अब हमें पढ़े नहीं, टिका कर रखे हैं। कई को वो रात के आखिरी हिस्से में उजाले पारे हमें वो वितर पढ़ती, वो नमाज हमें वितर की नमाज आखिरी वक्त पे पढ़ती। अच्छा, एक डाउट एक आदमी पूछा, हाँ हजरत मैं सो जाना कर बोलने को वितर पढ़ ले चलिए सो जाऊँ, उजाल बारे नींद उछार की 4 घंटे को, 4 को 4:30 को, नहीं 3 को 3:30 को। अब उठ के एक बार का मैं तहज्जुद पढ़ेगा तो पढ़े जाएगा तो पढ़ेगा। पहले से कि तहज्जुद पढ़ना अगर तो इरादा रहा तो वितर टिका को रखो, वितर टिका को रखो, तहज्जुद पढ़ो, फिर लास्ट में वितर पढ़ो। नबी साहब ने बोले हैं तुम्हारी आखिरी नमाज वितर रहना, रात में आखिरी नमाज वितर रहना, तो ये से टिका को रखो, तहज्जुद पढ़ लो, उसके बाद वितर पढ़ो। नहीं, पहले तुम्हारा इरादा नहीं है तहज्जुद पढ़ने का तो वितर पढ़ने जाओ, सो जाओ, हमको खत्म। एक बार का उठ को फिर पढ़ना तो भी पढ़ ले सकती, पढ़ लेना तो भी पढ़ ले सकती। तो हमें कितने रकात पढ़े हैं, 14 रकात नमाज पढ़े हैं। ये कहता वो सवाब कमाने का एक तरीका। दोनों तरीका क्या, अल्लाह की बात, अल्लाह के नबी की बात, कुरान की बात, हदीस की बात सुनना सुनाना, ये भी सवाब का काम, ये भी सवाब का काम। वो एक कैटेगरी। अब खाने में है देखो, चीला डाल लेते क्या, इडली डाल लेते क्या, पूरी डाल लेते क्या, पोंगल डाल लेते क्या, ये पूरे भी नाश्ते की चीज़ें थे। तो वैसा ये पूरे भी सवाब की चीज़ें, कौन से, नमाज पढ़ना सवाब का काम है। दूसरा बयान बोलना सुनना, अल्लाह की बात, अल्लाह के नबी की बात, ये भी सवाब का काम है। तीसरा काम हमें करने का है, वो क्या काम है, तस्बीह पढ़ लेने का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 30 को 3 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 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 30 को 3 बार, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर 30 को 4 बार। एक बार पढ़े तो 100 होती, 100 ऐसा, फिर को एक बार 100, फिर को एक बार 100, ऐसा कितने 100 पढ़े तो उतने सेटा वो सवाब इंशाअल्लाह मिलने वाला है। और नबी साहब फरमाते हैं जन्नत में तुम्हारी जमीन खाली होती है हर एक आदमी की भी। ये पॉइंट अच्छा याद रखो, ये पॉइंट दूसरे नहीं सर का, हर एक आदमी अच्छा याद रखना। क्या याद रखना, जन्नत में हर एक आदमी को भी एक खेत है, जन्नत में जाने वाले को। वो खेत में तुम्हें क्या करना है, झाड़ा लगाना है। क्या झाड़ा लगाना है, ऐसा हमारा खेत में आम की झाड़ा लगाते, छौं भी रहती है, फलना भी देता है। क्या रहती है, छौं भी देता है, फलना भी देता है, आमा खाने के लिए। झाड़ा नहीं लगाए तो खेत खाली रहता है। तो हमें क्या सोचते हैं, सहूलत पैसे रहे तो चलो भाई झाड़ा लगाएंगे, एकरे को 40 झाड़ा लगाएंगे, उससे छौं भी आती है, जाकर बैठने हमें फल भी तोड़ को खा सकते हैं। तो वैसा नबी साहब फरमाते हैं तुम्हारी जन्नत में तुम्हारी जमीन है, एकरे 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 एकरे, कितने एकरे है, ये जन्नत में जाने वाले को कितने एकरे देता है अल्लाह जमीन। हाँ, ये दुनिया कहती है कि वो 10 वत्ती देता है अल्लाह। ये दुनिया कहती है कि वत्ती 10 वत्ती जमीन अल्लाह हर एक आदमी को देता है। वाह, वत्ती जमीन क्या कर लेना, क्या कर लेना, देता है, ले पैसे लहारी उन्नति तो नको कर दिया हमें बैठी हमें 50 आदमी बल्ला नहीं लो 50 आदमी, परसों 100 आदमी थे, आज एक 50 ही अच्छा लगे। 50 लारी पैसे लगाते ही गवर्नमेंट बोली है आदमी एक लारी ले लेगा तो क्या करते हैं, वाह नक्को लगा मुझे होते कहीं को मुझे 1 लाख रुपए दे बस करती है हमें, क्या बोलते हैं। एक जना ऐसा सवाल पूछे भाई कि हाँ सामने रोड में 500 का नोट एक पड़ा है, 100 का नोट एक पड़ा है, कौन सा उठाता है तो ठक्कर क्या बोलते मालूम सब 500 उठा लेते हूँ गति, क्या बोलते हैं 500 उठा लेते हूँ गति, कई को तो बड़ा नोट कर को होशियार वाला क्या बोलता है 2 भी उठा ले तू, वो कहीं छोड़ना सो वो भी पैसे इतने हैं,
100 का भी उठा लेते हो 600 होते, एक उठा लेते 500 इतने। तो ऐसा हम यहाँ पटा न बैठे हैं, एक आदमी को भाई एक लहारी पैसे दे देंगे तो रखो कहती क्या हमें 500 के नोटा कट्टे कट्टे जोड़ डाली एक लहारी दे देंगे, रखो कहती हमें वो खाए होते दिन हमें जीते भी नहीं। लेकिन आज से हिरिस करने की इंसान को कहती है तो वत्ते पैसे पूरे जो तब ले लेती, कौन छोड़ते नहीं, तुम्हें छोड़ते नहीं, मैं भी छोड़ता नहीं, मंजे होना। तो इंसान को, हर इंसान को क्या है, आरज़ू ख्वाहिश है दुनिया में। तो ऐसा अल्लाह ताला हर इंसान को ये जमीन वत्ती 10 वत्ती जगह देता है। उतनी जन्नत में कहाँ है जगह, और सोचे जा है कैसा का तो पढ़े लिखे बल्ला के बच्चे हैं। ये दुनिया कितनी है, ऐसा ऊपर गए तो स्टार हैं, सूर्य हैं, चांद है, तारे हैं, जाते तो हमारा एक सौर कुटुंबम है, सोलर सिस्टम, ये जमीन का, ये सूरज का, ये सूरज का होगा तो ऐसे सूरज अभी ही लाखां के करोड़ां के सूरज हैं, ऐसे सूरज उनके अलग अलग दुनिया है, उनके अलग अलग पालापुंजलू अलग अलग ही। वो सब पढ़े लिखे बच्चा का अच्छा मालूम कितनी दूर है, 1 सेकंड को 3 लाख किलोमीटर के स्पीड से गए तो 1 सेकंड को 3 लाख किलोमीटर स्पीड से गए तो हमें जाते जाते रहते भी ये दुनिया के लास्ट अंचु में कहते हैं, लास्ट बॉर्डर जा सकते नहीं, हमें थोड़े हजारों के वर्षों का तो जा सकते नहीं, उतनी दूर है। कितने किलोमीटर का तो कंप्यूटर भी काम करता नहीं, कैलकुलेटर भी काम करता नहीं। हमें यहाँ से बस स्टैंड में 1 डाल ले, उसके बाद 0 0 0 0 0 डाल ले तो किरासोट को चल गए तो भी पसोते नहीं। वत्ती दूर है आभाई से दुनिया, अल्लाह की दुनिया वत्ती बड़ी है। असल ये जमीन क्या बीच नहीं, ये जमीन हमारी है ना, कितनी है जमीन, गोल 40,000 किलोमीटर है, कितनी है 40,000 किलोमीटर। तुम्हें इसके पहले मैं बोला हूँ, हाँ मैं बैठा हूँ, हमें बैठे समझो, हमें पूरे ये 50 आदमी हमें निकल गए समझो, तो जाते रहे तो 40,000 किलोमीटर गए तो वहाँ से आ जाती, कहाँ से एक खेत में से ध्यान बिल्कुल हटाया था, जमीन राउंड बाल के सरका है, कितनी है 40,000 किलोमीटर लंबी। ऐसा हो खोल डाले तो बाल को चूर बाल को फैले तो 40,000 किलोमीटर है नहीं। तो वैसा एक एक आदमी को अल्लाह कहता देता है 40,000 किलोमीटर का तो वो 10 वती का तो 4 लाख किलोमीटर देता है अल्लाह एक एक आदमी को वती जमीन। तो इसका मालिक तो ओनर तो राजा, इसका क्या करता कर ले, ये उनको कहते हैं नहीं, ये दे रहा तो अल्लाह क़यामत के दिन जन्नत में इतनी जमीन देने वाला है। अब वो खाली जमीन रख ले, क्या करना हमें, खाली जमीन रख ले तो खाली जमीन क्या कर सकता है आदमी, उसमें क्या चाहिए होना, जन्नत होना, बाग, जन्नत का माना असल क्या है, बाग, तोता, गार्डन, गार्डन कहते हैं नहीं, रकम रकम के बागा, रकम रकम के झाड़ा। तो जन्नत आपको क्या है, एक बड़ा गार्डन, हर एक आदमी के एक गार्डन। तो वो मैदान में गार्डन हमें लगा लेना, वो लगाना का तो क्या करना, झाड़ा लगा लेना। झाड़ा लगाने हमारा होता है कि यहाँ से खेल लेके जाओ, आसमान में ले आओ, वहाँ रखो, झाड़ा में पानी डालना होता है क्या, होता नहीं। लेकिन नबी साहब फरमाते हैं तुम एक काम करो, एक बार सुबहान अल्लाह करके बोलो, बोलो सब जन एक बार सुबहान अल्लाह। एक झाड़ पड़ेगा हमारा बीज, हमारी जन्नत में इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद रखेंगे, क्या तुम बोल लेंगे जन्नत को, तो नहीं, उम्मीद अल्लाह से एक भरोसा रखेंगे। हमने को जन्नत से भेजा तो हाँ झाड़ा के वास्ते एक बीज डालते रहना, कुछ क्या होता है तो एक बीज पड़ गया, झाड़ फूट जाता है, बड़ा झाड़ आता है, हमें गए लक्का क़यामत के दिन हमें जाते को झाड़ फूट जाता है। नबी साहब उनको फरमाते हैं तुम्हें कहते बार तुम्हें सुभान अल्लाह बोले तो हाँ एक बीज पड़ती है, एक झाड़ उड़ जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह बोले एक बीज पड़ती है, एक झाड़ उड़ जाता है, अल्लाह अकबर बोले एक बीज पड़ती है, एक झाड़ उड़ जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह बोले एक बीज पड़ती है, एक झाड़ उड़ जाता है। अब लगाओ कितने झाड़ा लगाते हैं। तो अब हमें ये रात में झाड़ा लगाना है, वो रात में हमारा बाग, हमारा गार्डन हमें बना लेना है, झाड़ा लगाना है। अब हमें कहाँ खाली बयान सुनती है सोयाते ही, उसके वास्ते एक काम करेंगे, करेक्ट सी 2 मिनट में पर्दा ले जा, 2 लहाजे सुभान अल्लाह 30 को 3 बार पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह 30 को 3 बार पढ़ो, अल्लाह अकबर 30 को 4 बार, मैं भी पढ़ती तुम्हें पढ़ो, हल्लू कर लेंगे 2 मिनट फिर बयान शुरू करेंगे। हमें झाड़ा लगा लेना, कहीं को हमना को फायदे की चीज़ हो,
بیٹھے تو کہیں کو نہیں کیا ہونا ہم کو بیان سنتے ہیں یہ بھی نہیں کی اصل وہ بھی بیان سنتے ہیں چائے لگا جب پیتے تھے بیان سنتے سنتے بھی چائے پی لیتے بسکٹ کھا لیتی تو ویسا 2 منٹ میں بیان ٹکا تو تمہیں یہ پڑھو ایک بار خاموش بیٹھے نہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا تو ہمیں 100 بار پڑھے ہیں اللہ کے فضل سے ہمیں ہے کہ تیزنا بیٹھے ہیں کہ ہمارے سب کے جنت کے گارڈن میں ہمارے 100 جھاڑا بیجنا پڑ گئے ہیں 100 جھاڑا پھوڑ جاتی ہمیں قیامت انشاءاللہ جب جنت میں جا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں آج کا جو تاریخ ہے 20 تاریخ 3 مہینہ 2025 کو فضل بیٹ کی مسجد میں بیٹھ کے ہمیں تاخرات میں 100 بار پڑھے نہیں کہاں ہمارے جھاڑا ہم کو جاتے جستے دیکھو پورا ڈیٹ واری تھی تمہارے جھاڑا پورے میں پھل پھلالی کے درختاں پورے میں کہیں کہ جھاڑا پھل پھلالی کے درختاں پورے لگے رہتے 200 بار پڑھی 200 جھاڑا 500 بار پڑھے 500 جھاڑا 1000 پڑھے 1000 جھاڑا ہمیں وہ ہمارے ہاتھ میں ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہمیں کتنے بار پڑھے اتنے جھاڑا وہاں ہمارا گارڈن ہماری جنت تیار ہو جاتی ہے. تو 3 کام ایک آگ نماز دوسرا بیان سنے تیسرا ہے پڑھے 4 کام یہ رات میں ہمیں کرنا سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے تو ثواب کما لو اٹھو کہیں کسے صحابہ کو اور یہ جب آخری عشرہ آتا تو ہم عائشہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 کام کرتے یہ آخری 10 دن کو کیا 10 دن کو 3 کام کرتے شد میزرہو عربی میں ہے شد میزرہو تو کمر کو کس لیتے دال کو ٹوال دال کو کس لیتے کمر کو کس لینا کئی کو کمر کس لیتے کیا آتا ہے کیا کمر کس درد کیا کرتے نہیں وہ کمر کس لینا کا مطلب ریڈی ہو جاتے اسٹڈی ہو جاتے آدمی زراعت کرنے والا کھیت میں کام کرنے والا کیا کرتا ہے ریت پھر کو ٹوال آتا ہے وہ ٹوال نکالا سوچے کمر کو کس لیتے پھوڑا اٹھا لیتا ہے کھیت میں کام کرنے کے لیے تو ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا آخری 10 دن آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے کمر کس لیتے تو کمر کس لیتے نہیں تھے ریڈی ہو جاتے اب میں یہ 10 دن اللہ کی عبادت میں گزارنا ان کا پورا ٹائم اللہ کی عبادت میں جاتا تھا لیکن یہ 10 دن اوور زیادہ ایک دم زیادہ 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 اس کے بعد وہ آئے خزاہ لہو انہوں بولتے ہیں گھر میں بیویاں کو اٹھاتے جا کو جے اٹھو کیا سوتے ہیں ایسے بس اٹھو اللہ کی یاد کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 بیویاں تھے تو ایک جنے پہلے گزر گئے بعد میں 10 جنے تھے اس دن کو ایک جنے چل گئے تو لاسٹ میں 9 آدمیاں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویاں 9 جنے تھے تو سب کے اٹھاتے گھر میں اٹھو 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 کیا کرتے ہیں کیا کرنا اٹھو اللہ کی یاد کرو یہ آخری 10 دن یہ ثواب کمانے کا وقت ہے اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے تو پہلے خود تیار ہوتے پھر اپنے گھر والوں کو تیار کرتے وہ احیا لیلہ عربی میں کیا ہے احیا لیلہ تو وہ رات کو زندہ کرتے رات کا تو مرگی ہے نہیں رات کو زندہ کرنے کا مطلب رات میں جاگتے اور بولتے نماز پڑھو اللہ کی یاد کرو کماؤ نیکی کماؤ لو نیکی کما لو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری میں ایسا کرتے تھے تو نیکی کمانے کے لیے صحابہ اور نبی صاحب کی بیویاں انہوں کے گھر میں انہوں بیٹھ کو کیا کرتے تھے
ये काम करते थे, ये राता में, ये 10 राता में ये कामा, कौन से कामा? कुरान पढ़ते थे 2 माह। अब वो लोग ऐसा बयाना नहीं थे, ऐसा 2 माह क्या करते थे? तस्बीह पढ़ लेते थे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये उसके साथ साथ दुआ करते थे, रात में बैठ कर दुआ कर लेते थे अकेले अकेले। भाई हमें यहाँ 40-50 आदमी ही, ये कोई देख ले बैठो ही, ये अकेला बैठो घर में करोगे तो होता है हमारे से, जरा खुद करेंगे 10-15 आधा घंटा हम बेजार तो बाद में देखेंगे सोया थे, आधा घंटे को बेजार हो जाते हैं, आधे घंटे को बेजार होते हैं। लेकिन नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ बोलते हैं हमें चिराग लगा ले तो घर में बैठते थे रात में, छोटे घरा, उनको बड़े घरा नहीं, छोटे होते थे घरा गुड़सिया, वो गुड़सी में चिराग लगा ले को रात में बैठते, हमें बैठ को अल्लाह की इबादत करते, दुआ करते। तो उन्होंने करते थे सो नमाज, तस्बीह, दुआ, चौथा काम कुरान पढ़ना। अब हमें भी वो काम करना, हमें कब करना? अब कुरान अब यहाँ बैठे जरगना का आता समझे, जरगना का आता नहीं, देखो पढ़ने क्या करना? उसके वास्ते मैं आसान से एक बात बोल दूँ, सिंपल, वो काम भी हमारा हो जाने दो। बोला नहीं नाश्ते में 4 चीज़ें हैं तो वो 4 भी डाल ले खाना करो, तो वैसा 4 चीज़ें भी हमें करेंगे, 4 चीज़ें भी। अब कुरान पढ़ना, कुरान पढ़ने हमें कहाँ आता है? हजरत सूर्य आते हैं, छोटे सूर्य पढ़ लेंगे। मैं बोल दो एक बार दिल में बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तुम्हारे दिल में बोलो, जोर से बोलना तो पढ़ाना। कहीं को तो क्या हम छोटे बच्चे क्या जोर से बोल कर करने, छोटे से हम आते नहीं, मैं जोर से बोलता हूँ तो मैं हल्लू दिल में बोलता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये सबको आता सूरा। अब इसमें कितने हरफा हैं कि उतने 10 ने क्या, कितने हरफा हैं कि उतने 10 ने क्या, हमारे फरिश्ते लिख डाले थे हर आदमी को भी। हमें यहाँ कितने ने बैठे हैं, कितने ने पढ़े हैं, हमें पढ़ते रहने को। खुल में 2 हरफा हैं, खाफ और लाम, खुल। हुआ में 2 हरफा हैं, 4। अल्लाह में 5 हरफा हैं, अलीफ लाम, लाम वो अलीफ आता है छोटा, फिर वो है अल्लाह, 5 भी 4 9। अहद में 1 3, अलीफ है दाल, 12 हरफा। 12 हरफा में 120 ने क्या पड़ जाती हमारे अकाउंट में? कुल अल्लाह हद का तो पड़ जाती। अल्लाह समद, अल्लाह में 5 हरफा है, समद में 5 हरफा है, 10 100 ने क्या वो एक पड़ जाती, 120 में 1 10 220। लम यलिद, लम यलिद में 5 है, वलम यूलद वो 1 3 वो 1 4 9 7 7 भी 1 5 12 वो करते हैं 120 है, ये 220 है, वो 120 है, 340 340 ने क्या? वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वो में 1 हरफ, लम में 2 हरफ, या वो पुराने कहते हैं 340 है। अब ये याद रख लो, ये मजाक क्या भी नहीं, वो क्या चुपके कहानी करगा नहीं। क़यामत के दिन हमें जब जाएंगे ये पढ़े से सवाब देखे तो अल्लाह इतने नहीं क्या मुझे चुपके आ गए ना बाबा, मैं ऐसा मालूम होता तो मैं रोज 1000 बार पढ़ लेता ना, इतने नहीं क्या आ जाती घर को। इतने बैलेंस है हमारा बैंक अकाउंट कितना पड़ता होता है, कैसे तो जरा डाला वो पूरा है अकाउंट को तो कितना खुश हो जाती, तो वैसा क़यामत के दिन इतना खुश हो जाती। तो वो 3 आयत कहते हैं 340 है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसमें कितने हरफा आती हैं? तो वो का 1, लम के 2, 3 यकुन 3 हरफा 6, लहू 2 8, कुफुवन 4 8 4 12, अहद 3 15 150। ये 340 है, 150 है, 490 ने क्या 500 को बोल ले जरा कम सरस। खुल्लू अल्लाह का सूरा हमें एक बार पढ़े तो 500 ने क्या हमारे हिस्से में अल्लाह दे डालता है, अल्लाह की मेहरबानी से ये फरिश्ते लिख डालते हैं। 500 ने क्या करना है? 500 रुपए दिए तो 500 ने क्या हम लगाते, समझो रुपया दिए तो एक नेकी तो 500 रुपये हमें बांटना तो दिल होता है हम लोग को। एक रोज को 500 बांटो होता कहाँ होता है दिल? एक बार आज दे डालती सवा मिल को दो 500 होता क्या जी, क्या काम नहीं हम लोग को, ये नहीं क्या इससे पैसे कमा को वहाँ पर दे डालना। मेरा दरमद होता नहीं ना, आपको बोलती जरा मैं कमाता सकता नहीं, मैं महीने 15,000 का तो रोज को 500 दूंगा, 500 कैसे डालना मैं?
500 रुपये दिए तो उतने नहीं क्या आती, लेकिन हमें एक बार खुद अल्लाह का सूरा पढ़े तो उतने नहीं क्या आए इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। फिर एक बार तुम बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इंशाअल्लाह 1000 ने क्या आगे हम हमारे हिसाब में अल्लाह जरूर जरूर देता है। तो ये काम अब अलम का सूरा पढ़े तो उसमें कितने हर्फ आएंगे उतने नहीं क्या आ जाते हैं। अब हम लोग देख को पढ़ने आया तो हम देख को पढ़े तो उतने नहीं क्या आते हैं। नहीं नहीं मुझे देख को पढ़ने आते हैं मुझे 2 सूरज है आते 100 2 चाहते हो 2 पढ़ो कितने बार पढ़ती होते नहीं क्या कितने बार पढ़ती होते नहीं क्या। और कुरान को समझ को पढ़े तो 10 होते नहीं क्या आते। तुम्हें खाली खुल अल्लाह का सूरा हो तो जबान दिल में पढ़ लिए तो 500 नहीं क्या, लेकिन तुम्हें उसका माना समझ को पढ़े या माना सुने तो 5000 नहीं क्या आती 10 होता आता है। अब उसका माना को तो हमारा मालूम नहीं ना हजरत कभी हमें पढ़ेंगे आप तुम्हें तो पढ़ लिए मदर से मालूम नहीं क्या तो एक बार मुझे सुनना हो इंशाल्लाह उतने नहीं का सुनना पाए 5000 नहीं क्या आते कि 2 में 2 हाजिर टाइम रख लो 2 मिनट में तुम्हारा 5000 नहीं क्या इंशाल्लाह आ जाते। उसका माना बोला तो माना समझो याद रख लो बस क्या माना। जरा अपने आप को पूछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के बारे में क्या कि बोलो भाई उसका पुत्र पूर्वक कौन अल्लाह कहाँ है कैसा है क्या कि बोलो है। जब अल्लाह ताला क्या करेगा तो अल्लाह अपने बारे में నేను ఎవరో చెప్పాలనా मैं कौन की बोलना क्या तुम ना को मैं कौन हूँ कहाँ हूँ कैसा हूँ अच्छा बोलता हूँ लो कल को अल्लाह ताला ये सूरत भेजा नबी साहब जिब्रील सलाम ने कहा दिए सुनाओ उनको अल्लाह का तो कौन कैसा है कहाँ है कल को बोलो। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सूरत सुनाई अल्लाह का तो कौन मालूम क्या ఇంట్రడక్షన్ ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటే ఇంట్రడక్షన్ అతని పరిచయం ఎవరు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఏమి ఎట్లా వాడు ఏం చేస్తాడు तो अल्लाह बोला मैं मालूम कराना क्या मेरे बारे में सुनो खुल ऐ नबी खुल को तो बोलो ऐ नबी इनको बोलो अल्लाह अहद खुल हुवल्लाहु अहद खुल हुवल्लाहु अहद ऐ नबी आप बोलिए वो अल्लाह हुआ तो वो दैट गॉड वो अल्लाह अकेला है वो अल्लाह अकेला है 120 नहीं अभी है 10 होते 1000 नहीं क्या आती उसमें खाली एक आयत का माना हमें मालूम कर ले तो 1000 नहीं क्या आती हम लोग। खुल आप कहिए तुम्हें बोलो क्या बोलो हुवल्लाहु वो अल्लाह अकेला है सिंगल है उन्हें पीछे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं अल्लाह एक है अकेला। अल्लाहुस समद इसका माना क्या अल्लाह बेनयाज है उर्दू में बेनयाज कदी तेलुगु में इसे आसान से बोलोगे तो हमारे भाषा में बोलेगा इजी से वायना अक्षर लेने वालों ये अक्षर लेने वालों अवसर लेने वालों उसे क्या जरूरत नहीं बेनयाज का तो उसे क्या चीज की जरूरत नहीं उसे क्या चीज जरूरत पड़ती नहीं। इंसानों को जरूरत है क्या भूख लगी तो खाना खाना प्यास लगी तो पानी पीना सिर में जैसा तो मात्रा डाल लेना बुखार है तो सिर डाल लेना ये जरूरत है ये नहीं तो हमें हंस सकते नहीं। वैसा अल्लाह को क्या चीज की जरूरत नहीं है अल्लाह को क्या चीज की जरूरत नहीं है उन्हें आसानी बढ़ाओ नहीं ऐसा उसे क्या चीज की जरूरत नहीं अल्लाह को खाने की जरूरत नहीं पानी की जरूरत नहीं जोड़ी की जरूरत नहीं बच्चा की जरूरत हमारा जोड़ा होना नहीं जिंदगी गुजारने के लिए जोड़ो होना बुढ़ेपन में देखने के लिए कौन होना बच्चे होना नहीं तो हमें बचाने पड़े तो बुक यहाँ से भाग सकती है हमें जा सकते नहीं बच्चे को बेटा पानी दे रहे गिलास से मात्रा लगा दे रहे तो हमने को जरूरत है ये के पर आधार पर को जीतेंगे हमें तो अल्लाह किसके पर भी आधार पड़ने वाला नहीं। तो अल्लाह समझाया अल्लाह समद अल्लाह बेनयाज है तुम्हें सुनेंगे बुद्धने का तुम्हारा बात इंशाअल्लाह। लम यलिद वलम यूलद उन्हें किसे भी पैदा कराया नहीं जन्म दिया नहीं जन्म देना का तो अब हमें जोरू मर्द से बच्चे होते नहीं तो जोरू मर्द क्या करेंगे बच्चे को जने ही वो अरबी में ऐसा माना बोलता हूँ औलाद को पैदा करेगी तो अल्लाह ताला वैसा औलाद को किसे पैदा करे नहीं अल्लाह के बच्चे कौन भी नहीं वलम यूलद और उन्हें दूसरे से पैदा होया नहीं दूसरा से पैदा होना होता क्या अब मैं हूँ किससे पैदा हो मेरे माँ बाप से पैदा हो तुम्हें किससे पैदा हो तुम्हारे माँ बाप से पैदा हुए तो
تو ہمیں پیدا ہونے کے لیے ہمارے ماں باپ کی ضرورت ہے، وہ نہیں تو ہمیں پیدا ہو سکتے بھی. تو اللہ کیا بولتا ہے، تمہارے سر کا منجے کام تو سوچ لیتی کیا، میں ویسا نہیں. یہاں جو مین پوائنٹ، تمہارے سر کا میں نہیں، تمہیں پیدا ہونے کے لیے ماں باپ کی ضرورت ہے، لیکن منجے ماں باپ کی ضرورت ہے. میں کسی بھی پیدا ہوا نہیں، یہ پٹلے میں میرے تک میں چھوڑ، میں کسے پیدا ہوا نہیں، اور منجے کون بھی پیدا ہوئے نہیں. ہمیں پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ کی میں پیدا ہوا ہو، ہمیں پیدا ہے، ہمارے سے ہمارے بچے پیدا ہیں، ان سے ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، جوڑے سے. تو دنیا سے چلتی ہے. تو ویسا کیا کبھی تم نے میرے بارے میں سوچتی کیا کہ میں ویسا کسی بھی پیدا کریا بھی نہیں، پیدا کر تو جنم دیا نہیں، پیدا کرے تو ہونے سے ہم نے پیدا کر بنایا تو ہونے سے. لیکن ایسا آڑا مگا کلی سی مرد بانا بھائی کو ان کی ملاپ سے جو بچے ہوتے، ویسا کیا بھی میں کسی بھی جنم دیا نہیں کہ ڈالنا مجھے کون بچے نہیں ہی، اور میرے ماں باپ بھی نہیں. میں پیدا ہونا تو میرے ماں باپ ہونا، مجھے ماں باپ بھی نہیں. یہ اس کا معنی. لاسٹ میں کیا بولا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور میرے برابر اس کے برابر کون نہیں، ایکول کون نہیں. ایکول کا تو وہ طاقت میں اللہ کی طاقت، اللہ کو کیا طاقت ہے، پیدا کرنے کی طاقت اللہ کو ہے، وہ طاقت دوسرے کو نہیں. کھلانے کی طاقت اللہ کو ہے، وہ طاقت دوسرے کو نہیں. تو اس طریقے سے کتنے طاقت ہیں، وہ پورے طاقت منجے ہی، دوسرے کسی بھی نہیں ہی. اور دوسری جگہ بھی آیت میں کیا ہے، اگلی جگہ اللہ کسی کو بیٹا بنایا نہیں، اللہ کسی کو جوڑو نہیں بنایا نہیں. اب وہ بچے ہیں نا تو سیم کوالٹی کے میل فیمیل ہونا، آڑا مگا مرد بنا بھائی کو سیم کوالٹی کے ہونا. اب بھینسا بھی کھوگا، گایا ہی گئی بیل، مرغا مرغی، ایسا چھیلا چھیلی، بکرا بکری. تو انسانوں کو بھی ایسا سیم کوالٹی میں میل فیمیل ہونا. تو اللہ کیا بولتا ہے، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، میں کسی بھی بیٹا بنایا نہیں میرا کوالٹی میں، اور کسی جوڑو بھی نہیں ہے منجے، مجھے جوڑو نہیں ہے، میرے کوالٹی کی جوڑو نہیں ہے منجے. اب میرے بچے کہاں سے آتے، خالی بیل ایک ہی سے سمجھو، گئی میں ہے تو پالا کیسا پیدا ہوتا ہے، گئی ہے تو پالا ہوتا ہے. گئی میں ہے دنیا میں، یہ گاؤں میں ایک ایگزامپل بولتا ہوں، یہ گاؤں میں ایک بیل کی اچھا گئی میں ہے. اب اس پالا کیسا پیدا ہوتا ہے، ہوتا نہیں. پالا پیدا ہونا ہوتا اسے گئی ہونا، وہ ان کے دیکھنے کے ملاپ سے پالا پیدا ہوتا ہے. تو اللہ کیا بولتا ہے، میں ویسا کسی بھی بنا لیا نہیں، جوڑو بنا لیا نہیں، مجھے بچے بھی نہیں، جوڑو بھی نہیں. تو یہ مطلب ہے وہ سورہ کا. اب وہ سورہ سنے ہی انشاءاللہ ہم کو 5000 نیکیاں مل جاتی، ملتی ضرور ملتی. جب قیامت کے دن دیکھیں گے ایسا کہ حضرت رات میں جاگنے کا کیا بولتے تھے، کیا کی ہمیں سنتے تھے کیا کی گزر گئی، لیکن جب قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب ہوتا ہے، عمل نامہ فرشتے لگا کے دیتی، وہ دیکھتی، وہ ڈیٹ وہی سکتا ہے. کمپیوٹر میں کیسا بینک میں تم پیسے بنو لیتے نکالتے رہے تو کمپیوٹر میں کیسا آتا ہے، ڈیٹ وہی ٹائم وہی آیا تھا نہیں پورا بھی، کون سے ڈیٹ میں کتنا پیسہ جانے کتنا نکالی، کون سے بھاجیاں کو گنجھیاں کو. تو ویسا ہمارا عمل نامے میں یہ پورا نکال آ جاتا، دیکھتے ہیں باپ اتنے نہیں کیا اللہ خوش ہو جاتی انشاءاللہ. ایسا معلوم ہوتا ہے پوری رات بیٹھ جانا، ہر روز بیٹھ جاتا تھا نا، ہر دن بڑھ جاتے تو کتنے نہیں کیا ہمیں کما سکتے تھے، گھر کو بول لیتے. تو وہ کام بھی ہمیں کرنا ہے. تو اس لیے کیا کرو، زندگی بھر جب بھی تم کو موقع ملا آج اس کر کو نہیں، آج کی رات کو پڑھے تو کرنے کی گر نہیں، کب بھی پڑھو قرآن کو، وہ ایک اسپیشلٹی. آج کی رات کو پڑھے تو بھی وہ کا ثواب آتا ہے. خالی دن برس کے 12 مہینے 364 5 days کب بھی پڑھو وہ ثواب ہوتا جاتا ہے. قرآن کو تمہیں سمجھ کو پڑھے تو اتنا 10 times بڑھ جاتا ہے ثواب اس کا. سمجھ کو پڑھنا ہمارا آتا نہیں جا حضرت پیدا تیلگو میں ہے، ٹرانسلیشن ہے، عربی میں اوپر ہے لائن میں، باقی کو تیلگو میں ہے. تیلگو قرآن لے کے بیٹھ کے پڑھو، آئین اللہ وقت آئین بخاری لے دوں بیٹے لے تو سمجھا کے ہے وہ ٹرانسلیشن کری. عربی ڈائریکٹ سمجھ سکتے نہیں والے کے واسطے کیا کریں گے، تیلگو میں قرآن لکھیں گے، اس کا میننگ بازو کچھ. اردو آتا ہے اردو میں پڑھو، انگلش آتا ہے انگلش میں پڑھو. تمہیں سمجھتے گئے تو تم لوگ اتنے نہیں کیا مل جاتے، حساب میں سکتے نہیں کیا مل جاتی انشاءاللہ. تو یہ کام ہمیں یہ 4 کام کرنے کا ہے.
पहले नमाज, 2 माह बयान अल्लाह की बात, 3 माह तस्बीह पढ़ना, 4 माह कुरान पढ़ना, 5 माह लास्ट में दुआ। ये लास्ट फाइनल, ये क्या है फाइनल। दुआ क्या है? मोमिन का हथियार है, वेपन, आयुधम। तलवार के साथ जंग को लेकर जाता है आदमी, वो तलवार से सामने वाले को मारता है, तो वैसा एक मोमिन का हथियार, एक मोमिन का हथियार क्या है? अल्लाह से दुआ करो। अब दुआ क्या करना? वो बल्ला एक बार बोला हो, सिंपल में 2 मिनट में बोलकर बात खत्म करें। दुआ क्या क्या करना? पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक आदमी आया तो मस्जिद में, तो अल्लाह मुझे खाना दे, पानी दे, सुखा दे, रुपा दे, पूछा जाए। अल्लाह ने पूछा सब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस लिए, बोले दुआ कर रहा है भाई, इधर आ क्या हो तो क्या करा सर? अल्लाह से पूछा, तुम्हें अल्लाह पूछो क्या? अल्लाह पूछा। अरे बंदे, अल्लाह को पूछना सर, लेकिन तरीका ये नहीं आया हो तो गड़गड़ 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 पूछेगा नहीं, आप कैसा पूछना? मैं बोलूँ सुन। तो नबी साहब बोले दुआ करना का तो पहले अल्लाह की तारीफ करना, अल्लाह की तारीफ करना, कबूल ना जरा अल्लाह को खुश करना। घरा मैंने मंगले खाते सर कैसा बोलते हैं वैसा जरा तारीफ करना, हमें मन खुआ इसके अल्लाह के, तो अल्लाह की तारीफ करो। अल्लाह तू सारी दुनिया का मालिक है, तू सारी दुनिया को पैदा करने वाला, सारी दुनिया को खिलाने पिलाने वाला, सारी दुनिया को चलाने वाला, सारी दुनिया को, सारे जानवरों को, चरिंदियों को, परिंदियों को, मच्छरों को, मगरों को, सारी चीज़ों को तो खिलाने पिलाने वाला, सारी चीज़ों की ज़रूरतें पूरे करने वाला, तो बड़ी ताकत वाला, तो सारी दुनिया का ओनर को, सब ऐसा अल्लाह की तारीफ करो, अल्लाह की तारीफ करो। अब उसके बाद मेरे ऊपर दरूद भेजो। कौन बोले? नबी साहब वो आदमी बोले मेरे ऊपर दरूद पढ़। क्या दरूद पढ़? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद। अब उसके बाद ये क्या होना कि पूछ अल्लाह से, अल्लाह मुझे पैसे होना, अल्लाह मुझे घरा होना, खेता होना, आम के बागा होना, क्या क्या होना, सुनना होना, क्या होना पूछ, तुझे क्या होना कि पूछ अल्लाह से। पूछने के बाद बिल्कुल लास्ट में एक बार दरूद पढ़, मेरे पर दरूद वो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मोहम्मद व आलिहि व सहाबिहि नहीं, ऐसा पढ़कर तो दुआ को खत्म कर जाते, तेरी दुआ पैक हो जाती है। क्या हो जाती है? पैकिंग। डब्बे में निकाल के चीज डाल को पैक कर डालती, उसे 4 तरह से बंद डाल को ये लगा डालते हैं प्लास्टर, पूरा पैकिंग। वो काम में डालो, उसमें अंदर चीज बाहर जाती नहीं, बाहर चीज जाती नहीं। तो वैसा हमारी दुआ पैक हो जाती है और फरिश्ते लेकर चल जाते। अल्लाह तेरी दुआ वेस्ट होती नहीं, इधर उधर जाती नहीं, सीधा अल्लाह करने जाती है। वो जाने के वास्ते ये तरीका करना करको नबी साहब से मुझसे बोले, तो बोला अच्छा हजरत अब से वैसा कर बोले। तो हमारे लिए भी ये नसीहत है, क्या करना? हमें अल्लाह से दुआ करे तो दुआ करते वक्त में ये काम पहले करना, अल्लाह की तारीफ करना। अब तुम्हें पढ़ लिया हजरत मदरसे में, तुम्हें कहा था उठा मगर क्या भी ना हो, इतना बोलो अल्लाह तो सारी दुनिया का मालिक है, सारी दुनिया को तू पैदा कराया है, तू खिलाता पिलाता है, तू सबको भी पालने वाला, तू तेरे से बड़ को बोलो, तू सबसे बड़ा अल्लाह, इतना बोलो बस, अल्लाह को खुश करने के लिए तारीफ हो, अल्लाह की तारीफ। उसके बाद जरूर नमाज में प्रवेश पढ़ लो। उसके बाद क्या क्या मांगना, और वो मांगने में भी मालूम है हमारी जरूरतें क्या क्या हैं। तो मैं एक 2 सिंपल बातें बोल रहा हूँ, वो अच्छा याद रख ले हमेशा, वो हिसाब से दुआ। क्या दुआ करो? अल्लाह मुझे ईमान की जिंदगी दे। कई वो तो जिंदगी कैसा गुजर जाती है, खाते पीते भी, ईमान नहीं तो बेकार, ईमान नहीं तो दोज़ख को चल जाते। उसके वास्ते पहले ये पूछे अल्लाह मुझे ईमान की जिंदगी दे और खुशी की जिंदगी दे। अल्लाह मुझे क्या भी तकलीफ आना नहीं जिंदगी में, खुश बस मुझे क्या तकलीफ, मेरे काम आसान से हो जाना, फट 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 मेरा काम हो जाना, मेरे क्या तकलीफ होना नहीं मेरे जिंदगी में। पूछो अल्लाह से, वो ऐसा होना कि वो सब होते, लेकिन पूछना सब पूछना मुझे अच्छा व्यापार करना, मैं रोज 1000 कमाता हूँ, समय से 2000 दिया अल्लाह मुझे, 3000 5000 दिया अल्लाह, क्या करना चाहिए दे, मैं हूँ तो मांगने वास्ते आयु सो तो नहीं क्या देने के लिए है करके अल्लाह का है। अल्लाह क्या बोलता है? कितना लेती कि लो भाई, नबी साहब फरमाते हैं
اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ ارے آدم کے بیٹے تو ہمیں سب بھی اللہ انسان پوچھا تو پوچھے اس کا پورا دے ڈالا تو بھی کتنا پوچھتا ہے وقتا بھی ہر ایک آدمی کو بھی دے ڈالا تو بھی اللہ کے خزانے میں دریا میں اوشن میں پانی جاتا ہے کہ 7 دریا میں پیسفک اوشن اٹلانٹک اوشن انڈین اوشن یہ سمندر میں ہے نا پورے میں 7 بھی وہ 7 کا پانی ایک طرف رکھو اللہ کا نہیں تو خزانہ وقتا کا بول رہے وقتے اس میں سے ایک خطرہ پانی نکالے بازو کو کتنا کم ہوا اس میں کیا 7 دریا کے پانی میں یہ خطرہ پانی ہمیں نکالے تو بازو کو کیا کم ہوا اس میں کیا بھی کم ہوا نہیں تو نبی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کا خزانہ اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے ساری دنیا کے انسان ہم کو ان لوگ مانگ نہیں سکتا وہ خیال ہے پورا بھی جگہ رہتے بھی اللہ کے خزانے میں وقتا بھی بال کا کب کم ہوتا نہیں اس کا خزانہ ہو سکتا کیا بھی کم ہوتا تو اس لیے مانگو اللہ سے مانگو دے اللہ مانگے ₹1,00,000 دے اللہ روز بھی بھائی بتا ہوتا کم پوچھو لوگ کئی وہ کم کئی پوچھنے کا اوسر نہیں ہے بلّہ کا ہے پوچھو کتنے دیتے دیں گے انہیں کتنا دیتے دیں گے ہمیں ₹1,00,000 دیجیے 1,000 دیتا کی 500 دیتا کی 2,000 دیتا نہیں بلّہ پوچھو اللہ تو اتنا بڑا تو اتنا کم دیا پیسہ اللہ تیرے حساب سے دے اللہ کو پوچھو اللہ کو دیا ہے کہ واہ کئی کا رہنے مجھے ٹھوس کو پوچھتا ہے جب جانا کہ بلّہ دیا دوں گا دے گا تو اللہ کی مرضی تو اللہ سے زیادہ مانگو پہلے کیا مانگو ایمان کی زندگی دے اور خوشی کی زندگی دے ایک زندگی پوری ہونے کے بعد کیا آنا انسان کو موت آتی ہے تو موت کے بارے میں پوچھو اے اللہ مجھے موت دے دیتے ہو ایمان کی موت دے کیا دے ایمان کی موت دے 2 ماہ موت کے ٹائم میں بہت تکلیف ہوتی ہے اللہ وہ تکلیف میں اس کا مجھے آسانی کی موت دے اللہ کو پوچھو ہر آدمی پوچھنا سو ہمیں ہر ایک آدمی بھی پوچھنا سو بات آئیے کیا پوچھنا سو مجھے ایمان کی موت دے مرتے ٹائم پر میں ایمان کی موت ہونا مجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر کلمہ پڑھتا ہوا شرک کے کامات شرک کے خیالات بھیجے میں نہیں سرکا خالی کلمہ پڑھ کے بناتے نہیں منہ سے بلاتے نہیں وہ ٹائم پہ وہ خیال بھی ہے سنا آدمی کا سب کچھ کرنے والا تو تیرے سوا کسی کیا ہوتا نہیں یہ درجے یہ پھر یہ ناگل کشمیر اجمیر یہ سب کیا بھی نہیں ان میں کیا بھی نہیں یہ محرم پنجاب میں اس میں اس میں کیا بھی نہیں سب کچھ کرنے والا تو تیرے سوا کسی کیا ہوتا نہیں یہ بھیجے میں رب کو مرنا ہونا مرتے ٹائم کو خالی کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ جنت جاتا نہیں وہ ٹائم کو وہ بھیجے میں وہ خیال پورا ایسا تھا نا اس کا مائنڈ سیٹ تو وہ ایسا مرنا انہیں مرتے ٹائم کو تو وہ نبی صاحب بولی خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے ہو گے نبی صاحب خاتمہ بالخیر کا تو کیا ایمان کے پر موت آنا ہمنا تو وہ دعا کرو اللہ مجھے ایمان کی موت دے اور آسانی کی موت دے اللہ تکلیف نہ کو اللہ میں سکھا سکتا نہیں اللہ میں تکلیف ہو آسانی سے مجھے موت دے میری روح آسان سے نکالنا فرشتے 2 ایمان کی زندگی خوشی کی زندگی ایمان کی موت آسانی کی موت 2 ہاں تو ہماری زندگی ہو جاتی ہے 3 ماسٹیج خبر اللہ میرے خبر کے سوالوں کے جواب دینے من رب کا مادین کا من نبی کا یہ سوالوں کا جواب دینے کی توفیق دے اللہ مجھے میرا منہ پھرنا میں کریکٹ سے بولنا پھر تو مجھے خبر میں آرام کی زندگی دے تکلیف کی زندگی نہ ہو 3rd اسٹیج وہ ہو دیکھو 4th اسٹیج حشر کے میدان میں ہمیں جانے کا ہر ایک آدمی بھی جب کرتے ہی وہاں 2 چیزیں آتی پیاس سے بچو پیاس سے سنبھال سکتا نہیں آدمی تو وہ ٹائم کو وہ پیاس دور کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے آگے پیسے نصیب کرنا 2 ماہ کو دھوپ بڑی دھوپ مارچ اپریل میں کیسے دھوپ ہوتی ہے وہاں 80 لاکھ کی دھوپ ہوتی ہے کھڑ سکتا نہیں آدمی اب وہ دھوپ سے بچنے کے لیے اللہ کیا کرتا ہے چھاؤں دیتا ہے اللہ کی چھاؤں یوم لا ظل الا ظلہ قرآن میں ہے یہ قرآن میں اللہ بولتا ہے اے انسانوں اس دن میری چھاؤں کو دوسرے کی چھاؤں کو کیا بھی ملتی نہیں میری چھاؤں حفیظ ہو تو اللہ کی چھاؤں پوچھو اللہ میں کھڑے نے قیامت کے دن میں 4th اسٹیج ہے زندگی 2nd موت 3 ماہ خبر 4 ماہ اللہ حشر کے میدان میں کھڑے کے ٹائم کو تیری چھاؤں میں کھڑا کر 2 ماہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے آگے کوثر پلا اللہ وہ پانی پیا کے پھر بھوک پیاس لگتی ہے آدمی کو نہیں تو پیاس سے تڑپ جاتے ہیں 2 چیزیں کہتے ہیں 5 اسٹیج میں یہ 2 ماہ 4 ماہ 5 ماہ 1 2 3 4 ماہ اسٹیج میں
दो चीज़ें मेन, अल्लाह की छौ पूछो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से आबे कौसर। अब एक क्या हुआ, वो बैंक को चलने का वाला काम, अब एक काम क्या है, हिसाब किताब, अमल नामा परीक्षा लगा तो देती हाथ में, तो वो टाइम को मेरा अमल नामा सीधे हाथ में दिए सकर अल्लाह, सीधे हाथ में मिले तो उन्हें पास होता है, दाएं हाथ में दिए तो उन्हें फेल हो जाता है, तो मैं पास होने के लिए सीधे हाथ में दिया अल्लाह मेरा अमल नामा। एक चलते काम में 3 काम, 4वां काम मेरा हिसाब आसान हो जाना अल्लाह, वो जो सिंपल से जावा वो पलटा को ये क्या तो गया उन्हें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुआ करते थे, सारे नबियान के सरदार, अल्लाह हासिबनी हिसाब यसीरा, उन्हें अरबी बोल लेते थे, हमें उर्दू बोलेंगे, अल्लाह मेरा हिसाब आसान कर अल्लाह। क्या आसान हिसाब है? अम्मा आयशा पूछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोड़ी ना हो हजरत तुम आसान हिसाब करोगे, पूछी ना अल्लाह से क्या आसान हिसाब को, तो उन्होंने बोले आयशा आसान हिसाब को तो क्या मालूम, अल्लाह किताब खोलना नहीं, किताब ले सामने पपो जाओ भगल पट्टी देखना नहीं, फमन नो कैसा वक्त हलका, नबी साहब फरमाते हैं और कमा अलैहिस्सलाम कोई से आदमी को अल्लाह किताब खोल गए, ये पेजी में ये कहीं करा सो, ये कहीं करा सो तो हो गया, अब जवाब दे सकता नहीं, खड़े करना पकड़ नहीं बोलो खड़े नेक्स्ट द्वार ये खड़े करा 50,000 बरस खड़े ना, कितने बरस करना 50,000 बरस खड़े ना, उसके बाद हिसाब किताब में उसका चल गया था भगल पट्टी। ये पूछो क्या पूछो, अल्लाह से क्या पूछना, आसान हिसाब, सीधे हाथ में मिलना चाहिए थे, आसान हिसाब, ये 4 पॉइंट हशर का मैदान में 4th प्लेस में। उसके बाद 5th प्लेस 5वां वो क्या, पुलसिरात, तले दोजख है, ऊपर है बिड्डी है, ये बिड्डी से यहाँ से हम जाना, वहाँ उजाला होना अंधारा होता है, मामूल से क्या बोलते हैं, बाल से बारीक है तलवार से तेज है, कहते हैं नहीं, बाल से बारीक है तलवार से तेज है, उतना मुश्किल वो बोलने पाते सब बोले सो, बाल से बारीक कहे चल को जाने का आदमी को पावा है चौड़े लेके चलना नहीं होना, तो तकलीफ वाला आकर के बोलने पाते, तलवार से तेज है, तेज के ऊपर चले क्या होता है, खड़िया था नहीं पावा वो आ जाता है, चाकू के ऊपर चले क्या होता है, तो वो समझाने वास्ते बोले बाल से बारीक तलवार से तेज है वो रास्ते पर जाना हमें सब भी, तो वैसा नहीं है, वो चौड़ा होता है, लेकिन हमारा दिखता नहीं, क्या दिखता नहीं, हमारा कटी की चीज कटी, तो वहां जाना कहाँ जाकर मरने का ऐसा जैसे में चले धमक रख पड़ जाती, इसमें दोजख में पड़ जाती, वहां दोजख में से चुपको जाना हमें, और एक भी दोजख के हाथा आती नीचे से ऐसा, ये जैसी भी खैसी लोग उठा हो खजरे घाट डालती मट घाट डालती ऐसा उठा तो ऐसा जैसे भी सर का हाथा आती दोजख के, वो आदमी ज्यादा हाथों को पकड़ खींच के गिराती, वो बाहर खींच के गिराती दो तरफ भी, तो वो हाथा से बच को जाने वास्ते उजाला होना, अंधारे में क्या जैसा खड़े गए तो पलट कर डाला तो उजाला होना, तो उजाले वास्ते दुआ करो अल्लाह पुलसिरात के पर मुझे उजाला दे, वो उजाले में मैं दोजख से बच को चल गए सकार अल्लाह। 5वां स्टेज, 6वां स्टेज लास्ट, ये दोजख से बचा को जन्नत में चल गए तो हम होगा, जन्नत में चल गए तो हम होगा। अब जन्नत में जाने के बाद क्या क्या जो ना अल्लाह को देता है, लास्ट में सबसे बड़ा इनाम अल्लाह का दीदार। ये 6 चीजें हमें मांगना, किसके वास्ते मांगना, पहले मेरे वास्ते, फिर से मेरी माँ के लिए, मेरे बाप के लिए, माँ बाप के लिए, किसी से अच्छा याद रख लो, फर्स्ट कभी तुम दुआ करे तो अल्लाह से हमारा क्या लैंग्वेज है तो वो लैंग्वेज करना, और अरबी में करना कर क्या जो जरूरी नहीं, अरबी में करना कर क्या जो जरूरी नहीं, उर्दू में हमारा तो उर्दू में सब पूछ लेते, अल्लाह ये सारी चीज़ें मंजूर दे, मेरे माँ बाप को दे, मेरे बीवी बच्चाओं को दे, मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे नाना नानी दादा दादी, मेरा मामू चीचा खाला फुप्पू सबको दे, मेरे भाना को भाइयों को, मेरे नवासे नवासा पोतरे पोतरिया बेटिया जमाया बेटे भवा सबको दे, उसमें हम बोले कि इजी क्या मेरे पूरे खानदान को एक बात में आ जाती है, सब देने मेरे पूरे रिश्तेदारों को, मेरे सारे खानदान वालों को भी ये चीज़ें दे, पहले मंजे भी दे फिर इनको भी दे, बिल्कुल सारी दुनिया के मुसलमानों के हक में मांगो अल्लाह, सारी दुनिया में कितने मुसलमान आएंगे उनको सबको भी दे अल्लाह, माफ़ कर अल्लाह, उनको सबके गुनाह माफ़ कर अल्लाह, फिर गुनाह के बारे में भी माफ़ी मांगना, अल्लाह मेरे छोटे गुनाह को माफ़ कर, मेरे बड़े गुनाह को माफ़ कर, मेरे छोटे गुनाह को माफ़ कर,
बड़े गुनाह को छोटा चल जाए बड़ा हो तो जातो फिर वहाँ से उसका मेरे वो अरबी में कबीरा सगीरा कहती अरबी में क्या होते कबीरा सगीरा कबीरा का तो बड़े सगीरा का तो छोटे अल्लाह मेरे छोटे गुनाह को माफ कर मेरे बड़े गुनाह को माफ कर। और एक भाई एक बात याद रखो छोटे गुनाह हमें वही करके चल जाती हमारे नमाज को वजू करनी हमें जाते भी छोटे मोटे करे तो वो वजू से चल जाती हाथां से करे तो हाथां से चल जाती मुँह से जाते बोले तो खुली करे चल जाती देख से हंचा से चल जाती चल को पावा से करे तो पावा से चल जाती। लेकिन बड़े बड़े गुनाह जाते नहीं माफ होते नहीं नमाज पढ़े तो माफ होते नहीं रोजा रखे तो माफ होते नहीं फिर कैसा होते बड़े गुनाह तो क्या झूठ बोलना शराब पीना एक का माल नहा खा लेना लंचम लेना वड्डी खाना क्या जिना करना बड़े औरत से तो ऐसे कामों से भी एक ऊपर नहा और झूठा इल्जाम लगा को केस में अट्टा डालना झूठी साक्ष्यम तपुर साक्ष्यम जब बोलना ऐसे चीज़ों को क्या है बड़े गुनाह ये पूरे भी ये नमाज पढ़े तो माफ होते नहीं रोजा रखे तो माफ होते नहीं फिर कैसा माफ होते तौबा करना अल्लाह से अल्लाह ऐसे काम मैं कर रहा हूँ मेरे से गलती हो गई मुझे माफ कर अल्लाह को पूछना और क्या बोलना आपसे कभी करता नहीं अल्लाह आपसे कभी करता नहीं अल्लाह शराब पिया हो आपसे कभी पीता नहीं बुरा काम करा आपसे कभी करता नहीं कर वो अल्लाह से दिल के साथ सच्चे दिल से दुआ मांगना ये पूरे फिर ये मंजे भी कर मेरे छोटे बड़े गुनाह मेरे माँ बाप को भी माफ कर मेरे सारे खानदान वालों को माफ कर सारी दुनिया के मुसलमानों को भी तो माफ कर अल्लाह छोटे बड़े गुनाह को अल्लाह से दुआ मांगना है। अब क्या क्या होना कि अब घर में हमारे परेशानी है बच्चे को जान अच्छा नहीं दुआ करो अल्लाह मेरे बच्चे जान अच्छा नहीं अच्छा कर अल्लाह बच्चे की शादी होना है अल्लाह मेरे बच्चे की शादी कर हो सकर अल्लाह बच्चे को नौकरी आना है अल्लाह मेरे बच्चे को नौकरी अच्छा कर अल्लाह तब कमाई का जरिया दिखा अल्लाह बेटे को बेटी को भान को भाई को किसी भी माँ बाप को क्या बीमारी है अल्लाह जिनसे बीमार नहीं अच्छे होते नहीं अल्लाह उनको अच्छा करा उनकी तबीयत अच्छा कर बीमारी से बचा अल्लाह मुसीबत से बचा अल्लाह परेशान ये सब पूछना अल्लाह से ये सब हमें पूछना हमारे लिए दुआ कर लेना तो ये दुआ भी हमें हर दिन भी करना और ये रात में भी करना तो ये 5 आइटम नमाज पढ़ना कुरान पढ़ना तस्बीह पढ़ना बयान सुनना प्लस में दुआ ये 5 आइटम भी हमें हर रात में भी करना करे तो इंशाअल्लाह हम आपको अल्लाह वो 1000 रात का सवाब देता है इंशाअल्लाह देता है। कई होता है ये करने का काम लास्ट में एक छोटा ये सुना दो खबर में जाने के बाद हर आदमी को सवाल का जवाब नबी साहब से वही बोल रहा है कि 2 रकम की अदला होती नेक आदमी सवाल का जवाब तैयार है मन रब्बू का तेरा रब कौन है तो बोलते रब्बी अल्लाह मेरा रब अल्लाह है नेक आदमी बोला। 2वां सवाल मन नबी का तेरा नबी कौन है मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला। माँ दीन का तेरा दीन क्या है मेरा दीन इस्लाम मैं मुसलमान था बोला होता है वो क्या रहे उन्हें नमाज पढ़ा नहीं रोजा रखा नहीं काफी ख्यालिश करा नहीं पूरे काम में रहा सब ये काफिरा भी थी इन्होंने भी क्या बोलते हैं मन रब्बू का आते हैं कि हाँ ला अजरी करे नबी साहब हम बोली क्या करते आइए क्या मुझे मालूम ना कौन की मेरा रब मुझे पहला काम कौन नहीं मालूम बोला फिर को मन नबी का तेरा नबी कौन नहीं मालूम नहीं बोला माँ दीनू का मेरा दीन क्या आपको मालूम नहीं बोला होता है ये इतना नबी साहब हम बोले तो हमारे अपने बुजुर्गों के बारे में तारीफ करते इतनी गाली से मालूम बड़े बड़े हजरत 70 बरस 80 बरस उम्र बड़े बड़े हजरत उन्होंने लिखी कहानी भावुसरानी का एक आदमी था उनके घर में काम करने वाला कपड़े धोने वाला मर जाने तो खबर में फिर से जाग पूछे मन रब्बू का तेरा रब कौन बोले तो मैं भावुसरानी का धोबी कहते जवाब कि पूछे जो सवाल क्या तो बोल रहा है जवाब क्या जान चले मन नबी का तेरे नबी कौन पहले मन रब्बू का मन नबी का तेरे पूछे तो मैं भावुसरानी का धोबी दिया फिर लास्ट में ये मजाक हंसने का नहीं किताब में लिखो प्रेम कर को बांटते ही देखते ही भावुसरानी करामत कर दो देखो बदला समझते नहीं 3 बार सवाल को भी तेरा दिन क्या होता है मैं भावुसरानी का धोबी ही गया और फिर इससे हमको भेजा काम कराया अरे कहीं नहीं तुम बोल रहा ना तब अल्लाह का निकाय अल्लाह इसे क्या करने का अल्लाह क्या हो तो हमें क्या पूछे जब मैं भावुसरानी का धोबी भावुसरानी धोबी तो कहा है अल्लाह बोला जाने छोड़ा ना माफ करा इन बना दी उसकी कहानी
झूठी कहानी लिख डालेंगे बड़े बड़े हजरत। ये एक बात फर्स्ट है, खबर में होता है कि तुमने कैसा मालूम, कौन जाकर देखें खबर में क्या होता है। हम नबी बोल रहे होता तो ऐसा तो होता है, नहीं वैसा तो होता है। ये बोले कि हमारा नबी मैं भाववानी का धोबी इधर को बोलता है, और वो नबी साहब ये बोलेगी वैसा बोला कि तो वो कलमा आता नहीं कर को, उन्हें मुसलमान नहीं कर को साहब उन्हें जाता है। ये ना उसे उठा को ऐसा झूठे कहानियाँ झूठे किताबा इस्लाम के बारे में नहीं तो सब बोल 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 आदमी सबको भी भेजे, सब खराब ये कर रख डाली, स्ट्रक खराब रख डाली, स्ट्रक होगी नेट बोल्ट में स्ट्रक फिरा के तैयार लाश को आना फिर बाद स्ट्रक आता है, फिर सामने लगे नहीं पूछेगा था नहीं। तो ऐसा हमारे भेजा को जरूरत में स्ट्रक खराब रख डाली, बोले करामता ये बोले वो बोले ये दरगाह वो दरगाह ध्यान जाओ वहाँ जाओ। हालांकि वो सब क्या भी नहीं, असल हकीकत अल्लाह की बात मानना, अल्लाह के नबी के तरह हम चलना। तो ऐसा भावुसवानी का धोबी उन्हें जना बोला और तुम भावुसवानी का धोबी तुम भावुसवानी सिखाना नहीं किया, क्या कर रहे मरगा को उन्हें मुसलमान तेलंगा नहीं, उन्हें भावुसवानी का धोबी है ना, उन्हें तेलंगा नहीं, उन्हें मुसलमान नहीं थे। कहीं तो इराक में तेलंगे कहानी वो टाइम को मुसलमान नहीं थे, मुसलमान होकर से बोल रहे हैं नहीं तो भावुसवानी इतने बड़े चल कपड़े बुलाने को कि वो सिखा नहीं है, बड़े बड़ी है तो सिखाना नहीं आदमी को। दूसरा हम सबको भी बोलती है घर के आदमी को बोलना नहीं क्या ये बाबा साहब में था खबर में से सवाल होती तो समझ गया जवाब देना, वो सिखाना नहीं क्या, उन्हें सिखा नहीं सकती खाली मैं भावुसवानी का धोबी का तो कैसा होता है, वो क्या भी चलता नहीं। अल्लाह का ने कौन किसका क्या चलता नहीं, अल्लाह का ने हर आदमी को उसका अमल उसके साथ होना। कई कहते आखिर में बात खत्म होता हूँ, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था, अच्छा और तो सुनो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था, अब इंतकाल गया थी 1-2-3 दिन में 4-5 दिन में उनको मालूम पहले जहाँ फरिश्ता बोला है तुम्हें रेडी फलान टाइम तुम्हें चल जाना दम निकाले के ले देंगे, सारे पैगम्बर को भी बोलती फरिश्ता इनको भी बोल डाले। जब बेटी को बोला बोले बीवी फातिमा को लाडली बेटी कि ये क्या होना कि पूछना मेरे माल में मेरे ने कहा है कि घर में चूल्हा के बनाते मैं दे डालता हूँ, मैं अल्लाह का नहीं क्या ही बचा सकता नहीं, क्या कर सकता नहीं। अल्लाह का ने मैं सारे नबियों का सरदार, उन्होंने नबी साहब सारे नबियों का सरदार इंसान में नंबर 1 है, तो भी अल्लाह के सामने आऊँ मैं क्या भी बोल सकता नहीं कर सकता नहीं। तो तेरी नमाज तेरा रोजा तेरे नेका तुझे फायदा देती, मेरी बेटी का तो अल्लाह का छोड़ता नहीं, मेरी बेटी का तो अल्लाह छोड़ता नहीं। और नबी साहब बोले तो अपनी बेटी को, हालांकि वो बेटी कौन है, जन्नत के और की सरकार लीडर हो, जन्नत में जाती हो कौन, बीवी फातिमा नबी साहब की लाडली बेटी छोटी बेटी, नबी साहब के 7 बच्चे 3 मर्द बच्चे 4 भाई के बच्चे, तो भाई के बच्चे सबसे छोटी बेटी लाड करते थे। नबी साहब क्या बोले मेरी बेटी मेरा दिल का टुकड़ा, फातिमा मेरा कलीजा, मेरा बोलते हैं मैं हमारे बच्चा को भी मेरा हीरा है, मेरा सुन्ना है, मेरा गुजरी है, बोलते हैं बच्चा। तो ऐसा नबी साहब बोलते थे मेरी बेटी कौन मालूम क्या, मेरा कलीजा मेरी बच्ची, घर को जाते हाथ ले को प्यार करते, पेशानी को प्यार करते, खिलाते खाई नहीं माँ क्या मेरी बच्ची मेरा हीरा, इतना मजा करते थे जिंदगी में। एक बार नबी साहब ने कौन गोश्त लगा दिए, हजरत तुम्हें 2 दिन से क्या खानी गोश्त आए खाओ, तो मैं खाने का टिका मेरी बच्ची खाना है, कितने रोज की 2 रोज की 3 रोज की पहले खा ले दो मेरी बच्ची खा ले, बाप भूखे बेटी को नहीं भेजा बेटी खा दे। तो इतनी माया वाले इतनी माया बेटी के ऊपर नबी साहब ने क्या बोलते हैं बच्ची दुनिया में मैं क्या तो करना तो कर सकता हूँ, वहाँ क्या भी कर सकता नहीं, वो भरोसा तो रख ले रखो, वहाँ के वास्ते तेरा काम तेरा, मेरा काम मेरा, तेरी नमाज तेरा रोजा मकामत है, मेरी बेटी को अल्लाह छोड़ता है। कल नबी साहब दुनिया में बेटी को बोलते गए तो ये हजरत जरूरत में भावुसवानी का धोबी छोड़ डालना मार चप्पल से मेरे बेटे का छोड़ता नहीं, गरीब से छोड़ दिया, तू भावुसवानी धोबी है क्या, तो किसका धोबी कुत्ता है क्या, तेरे आमल तेरे ने क्या तू क्या करेगी वो बोल, मैं उसका धोबी इनका आदमी हूँ, तेरा आदमी किसका आदमी चलता नहीं। अल्लाह का ने रिकमेंडेशन रिश्तेदारी के साथ चलता नहीं, रिश्तेदारी क्या भी चलती थी अल्लाह ने, अल्लाह का ने उसका अमल उसे होता। लेकिन
अल्लाह भी बोलता है इंसान को, एक अच्छे आदमी को, नेक आदमी को बोलता है, हर आदमी को बोलता है भाई तू किसी को भी सिफारिश करने का तो कर को अल्लाह परमिशन देने के बाद आदमी बोलता है अल्लाह हमारा माँ बचा, अल्लाह हमारा बाप बचा, अल्लाह मेरे बेरू बचा, अल्लाह मेरे बच्चा का, तो भूल तो बोलता है नहीं। अल्लाह हो तो परमिशन दिए तक कभी मुंह खोल सकता नहीं, अल्लाह का नहीं, वो भी कुरान में है। ये बात भी मैं तो बोलना मैं छपाया तो फिर तो बोले नहाना के बाद रिकमेंडेशन, मैं फलाने का बच्चा, फलाने का बेटा, फलाने का भाई, फलाने का भान कर को वो कनेक्शन के ऊपर छोड़ता है अल्लाह। आदमी को परमिशन देता है रिकमेंडेशन करने, जब वो रिकमेंडेशन करा तो उसके रिकमेंडेशन कबूल करता है अल्लाह। जब अल्लाह अच्छा ले तू बोलता है तू नहीं करनी तो जन्नत ज्यादा सलाह तू छोड़ो कहता है अच्छा ले जा भाई, उन्हें बोले तू छोड़ता हूँ जा कहता है अल्लाह। कब इसे जन्नत को जाने वाला है ना, इन्हें नहीं करते रहना, जब छोड़ता है इसे बोलता है परमिशन देता है तू बुला ले भाई किससे होना तो हमें भी हाँ दावत अंदर बोलते हैं अन्ना अन्ना और माँ बोले ना माँ बोलो अरे आ जा रे अन्ना बोले छोड़ो आ जा अंदर कहते हैं अंदर बुला दिए दावत में आ जा भाई हमारा आदमी साथ साथ छोड़ो साथ तो छोड़ देंगे तो हमारा आदमी को तो हमें अंदर जाने वाले है तो हमारा आदमी छोड़ दे, हमें जाना देता हूँ तो बाहर जाने वाले मेरा आदमी छोड़ दिया। तो ऐसा अल्लाह के नबी भी बोले ही कुरान में अल्लाह क्या बोला है, अल्लाह बोलता है वो आदमी को कि होना सज्ञा कौन की जब आज्ञा तेरे खास आज्ञा। एक बार का भाऊ सुबानी को बोला कर बोल लो अल्लाह क़यामत के दिन भाऊ सुबानी तुम ना होना जब आज्ञा किसे बुला ले तो हमने बुला दिया, उनके अम्मा बाप बुला देती, उनके बेरू बच्चा बुलाते, हम ना कहीं बुलाती है, हमें कितने बरस के बाद की आज्ञा उनसे आपको हमें 700 बरस होगा, वो आज्ञा बुलाने पर अल्लाह बोलता नहीं कितने आज्ञा हुआ मेरे बुरी का कितने हिंदी मेरे आज्ञा से भी हरी तो भी पहले साले हाँ ये डालिए सारे सब्जी ना खरीद ले बोलता नहीं अल्लाह। और मतलब बिल्कुल नबी साहब सारे उम्मत को खरीद लेना होता नहीं, सारे आज्ञा होता नहीं, वो किसी की उसके खास जरिए आज्ञा को रिकमेंड कर ले होगा अल्लाह कि होना जरिया बुला लेंगे जरिया को कुपे कुपे हजारा ना खाएंगे इन्हें कब भी नमाज पढ़ाते नहीं कैसा बुलाती जरिया ही नमाज नहीं रोजा नहीं हाँ मैं भाव जाने कैसे बुलाती भाव जानी कि क्या कर रहा तो नहीं नमाज रोजा है तो भी बुलाती तो कभी नमाज पढ़ी रोजा रखा नहीं मतलब किशोरी तरीका नहीं बुलाती हूँ वहाँ लाख रुपये का मार दूंगा वहाँ यारे दलिंदर मेरा नाम कहीं बर्बाद करता है, मेरा नाम कहीं यूज करता है, तू कहते भी मेरे मैं करे से काम तू भी करे क्या, अल्लाह की नमाज पढ़ना रोजा रखना वहाँ उसका हक है और किसका भी नहीं, उसे जर्रे अज्ञा को अल्लाह परमिशन देता है, वो जर्रे अज्ञा उसके घर वाले होती। अब हमें बोलो हमारा बच्चा अंगार में जलता है दूसरे बच्चे बचाते हैं, हमारे बच्चे बचाते हैं, हमारे बच्चे बचा देते हैं। अब एक बच्चा किसका कि जल्दी वाला बच्चा अंगार में पड़ा है तुम्हारा बच्चा हमारे किसे भाग बचाते हैं, हमारे बच्चे बचाते हैं। तो क़यामत के दिन भी हमें सिफारिश करे तो अल्लाह हमारा मौका दिया तो इसे सिफारिश करते हैं, हमारे अपना सिफारिश घर वाला कर लेते हैं, दूसरे हम दुनिया से खुद करते हैं तो क्या करते, लेकिन दुआ कर सकती है हमें अल्लाह सारी दुनिया के इंसान हम अच्छा रख अल्लाह पर हमें दुआ कर सकती, हमें बचा सकते नहीं किसी भी। तो ये दुआ को एक मोमिन का हथियार है, आयुधम मोमिन का वेपन मिशन गन बाम से मिसाइल बोल लो बटन वाली मिसाइल जब पड़ जाती है तो वैसा हमारी दुआ हमारी मिसाइल अल्लाह ने हमें दुआ मांगते हैं। तो आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है क्या अल्लाह परवरदिगार जितनी बातें हमें यहाँ घंटा डेढ़ घंटा सुने हैं, मेरे से पहले वो हजरत बोले हैं वो बातें भी अब मैं भी जितने बातें बताया हूँ मेरे भाइयों सुने ही, ये सुने हुए बातों को हमारे याद रखने और उसे उसके वो बातों को समझने और उनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह अगर आज शब क़दर है लैलतुल क़दर है तो उसका पूरा पूरा सवाब अल्लाह अता फरमा। हम जितने लोग दुनिया में जाकर इबादत करते हैं उनको सब जनाओं को भी ये सवाब अता फरमा, तेरे रहम से करम से सवाब अता फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे बीवी बच्चों के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे सारे रिश्तेदारों के गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह तेरे रहम से करम से फजल से सारी दुनिया के मुसलमानों के गुनाहों को छोटे बड़े कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे भी कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह अल्लाह को दुनिया के अंदर अच्छी ज़िंदगी दे, खुशी की ज़िंदगी अता फरमा, ईमान की ज़िंदगी अता फरमा। ऐ अल्लाह सारे दुनिया के मुसलमानों को इज्जत की ज़िंदगी अता फरमा, मुसीबतों को परेशानियों को
बीमारियों को दूर फरमा और तकलीफों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह आराम की ज़िंदगी अता फरमा। ऐ अल्लाह ईमान की ज़िंदगी अता फरमा। नमाज रोज़े की मोहब्बत हमारे दिलों में अता फरमा। हमारे बीवी बच्चों को भी नमाज पढ़ने की मोहब्बत, नमाज की मोहब्बत उनके दिलों में अता फरमा। ऐ अल्लाह जो सही बातें हैं तेरे दीन के, तेरे तू बताया तो कुरान की बातें, तेरे नबी बताए तो हदीस के सही बातें, वो बातों को हमें समझने और वो बातों को याद रखने, उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह दीन में जो बातें सही नहीं है वो बातों से हमारी हिफाजत फरमा, वो बातों से हम लोग को बचा, और जो सही बातें हैं उस पर अमल करने की हम लोग को तौफीक अता फरमा। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।